हिंदी में पॉडकास्ट को मार लो, खा लो, लेकिन पालो मत. Hello and welcome to Has It Aged Well. My name is Abbas. With me in the studio is my co-host Urjita Vani. Hello. Urjita, this is your first post-birthday podcast. How do you feel? Are you still hungover? No, क्योंकि एक दिन हो चुका. मैंने उतनी दारू पी भी नहीं थी, पता That's है. true, yes. मैंने एक ग्लास में ही I was just dancing Yeah. around. I don't know why, for some reason. For a change, I was Danced a also invited to a party. I felt very cool being at your birthday party. But you didn't dance. I didn't You were dance. the Nobody only danced. one. You were just sitting in a corner. You were like, मैं नहीं नाचूंगा, कितना भी कोई भी बोल ले. I think our guest is feeling left out. Like, Okay. कौन सी पार्टी की बात हो रही है यार? मैं क्यों नहीं था इसमें? नहीं, I'm pretty sure he isn't. Belated happy birthday, Urjita. We were discussing Dev D today. The quote I read out, I replaced the word Billy with podcast. And we'll find out why this film is so special for our guest. Our guest is stand-up comedian and podcaster and someone who you would have seen on this channel because he was on Antariksh's show called Just a Filmy Game Show, and his clips went viral all over the internet. So please welcome to the show, Chirag Panjwani. Thank you so much. I thought वो thematic introduction था. You're asking her about alcohol. कि this is how you Oh, introduce Dev D. nice. Fuck, I should have done that. It was. It was, yeah. We'll Yeah. cut this part out. So speaking, I just wanted to mention this one thing. चिराग लाइफ में मैंने इसको कभी भी कॉम्प्लीमेंट करने से इतना डरती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई वुड से एनीथिंग नाइस कि अरे यार ये अच्छा था, हाँ मतलब ठीक ही था मतलब. तुझे ये he always has this look like he doesn't believe that you're complimenting him, and even if you are genuinely like, even if he believes it, he's like, तुझे ये वाला पसंद आया. I'm judging your taste now. मैं क्या करा कब करा ऐसे? नहीं अरे Why do you do that, मतलब Chirag? no, this is accurate, but I don't think I've consciously not done it with you. no you have I have? Okay. green rooms, habitat green room, yes. Okay. So Chirag, we actually came to you with an option of another film, which is a very comedy film from the 90s. Yeah. But you insisted, no, I want to do Dev I mean, D. I mildly suggested. Insisted is heavy word. I just said alternate suggestion is So this film happens to be your favorite film? my favorite film. Also, it has a fair amount of jokes in it. Also. Yeah, Yeah. of course, yeah. Yeah. I will come to all of that. But Chirag, what qualifies you for this is you're from North India. Yeah. And are you an alcoholic and a druggie as well? No, drug. So I've been a very staunch supporter का opposite क्या होता है? Protester of drugs. Protester, yeah. Oh, really? हाँ, Oh, but- okay. Againster of drugs. Yes, againster of drugs, drug hater. Yes. But And still this is your favorite but film. this is Okay. the only movie that tempts me कि एक बार try करना चाहिए. अगर कोई पिक्चर पास आई है to convince me कि नहीं देखने में खराब नहीं लग रहा है, and by the end it convinces you कि नहीं गलत है नहीं करना चाहिए. But yeah, just they make drinking heartbreak look cool and then make it look accurate as well कि भैया इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, normally move on करो. Right. Normally move on करो, खारी बिस्किट खाओ यार, दारू क्यों पीनी है? Cool. We'll get to our first memories of watching this film and why this film is so special for Chirag and for the indie movie scene in general on the other side of this brick. Hi, this is Cyrus Rogan Brocha, pyar se Rogues. I've come up with a brand new idea. It's a premium product called Club Cyrus Says. It's an offer open just for you. Let me tell you about the product. We've got exclusive Cock and Bull episodes just for you. That's right, just for you. That means others don't get to see it. Also, you get exclusive footage, extra bits, the uncut version of the interviews with celebrities. And these are huge celebrities, not small-time celebrities. Only the big guys come on the show. So you'll get the exclusive bits that nobody else gets. The extra tidbits, special stuff, uncensored stuff you don't want to put out. That's just for you. And for our audio listeners, you get special ad-free content and early access to interviews and sessions and podcasts which nobody else will get. You'll get it first. You're the first people. You're Neil Armstrong. You're Edmund Hillary. You're whoever discovered India. You're that. And by becoming an exclusive member of Club Cyrus Says, you get the power. We transfer the power to you and you become the producers and you will decide what content or what happens on that show. You are the masters and we are we can't use words like that. People who work for the masters, basically. So guys, get in. Special audio features include, I forget. I can't remember what the And we're back on Has It Aged Well with Urjita and Chirag. Urjita,
This was the first time you saw the film properly Yeah, for this episode. yeah. Tell us what you felt and what was the experience of this movie for you. So जब ये चालू हुई तो विद एवरी अनुराग कश्यप मूवी माय फर्स्ट रिएक्शन कितने गंदे लोग हैं ये, मुझे एक भी पसंद नहीं है, क्या है ये ग्रे कैरेक्टर. लाइक आई अंडरस्टैंड सिनेमा, आई हैव सीन ग्रे कैरेक्टर्स, बट स्टिल लाइक द 10-year-old इन मी से ये कितने गंदे लोग हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. सो आई वाज वाचिंग इट विद माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, एंड आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली यार ये भी, एंड शी इज लाइक ठीक है बंद करो क्या, नहीं चालू रहने दे, I don't want to stop watching it. So I was engaged throughout. Like not once did I look at my phone, and I was like, so I understand now कि grey characters है. That's the point of the movie. That is your benchmark of a good movie कि मैं एक भी बार फोन को नहीं देखूंगी तो मतलब अच्छी पिक्चर yeah, थी. yeah. Nice. अच्छी पिक्चर थी, मतलब at least I was engaged. It's Correct. either like यहाँ पे मतलब बकवास चीत हूँ. Hmm. Is that I was engaged and then oh wow, marry me right now. It is that. Oh, that escalated Yeah. quickly. Yeah. So- But there is a history to this. We've discussed Bombay Velvet before on this podcast, and you're famously very against Kashyap, Scorsese, Tarantino type movie जो लड़कों को पसंद आती है और जो लड़के लड़कियों को दिखाना चाहते हैं. Where did this movie fall on that scale for you? So I remember I was in my college and as usual, so like there is a background to this, okay? I have a strong hatred for any sort, ऐसे कोई भी wannabe. Listen, now if you explain to me why you love a Scorsese film or a Tarantino, ऐसे कोई भी classic, तो I'll be on your side, मुझे कोई problem नहीं है. But if you just come and be like कि oh ये क्या हिंदी movie देखते रहते हो, Scorsese और Tarantino कितने amazing है, ये देखो वो देखो, like I have, so मुझ पे हमेशा से बचपन से force किया गया है ये सब classic movies. Okay. So which is why, and I haven't liked most of them. Like other than Inception, मुझे कोई भी ऐसे वो classics जो होते हैं, Citizen Kane also I liked a little bit. Wow. तो Probably the greatest movie of all time. And ठीक है मतलब see, फोन see, नहीं देखा मैंने I have अपना. very problematic opinions About about Citizen Kane? no about this whole topic, bro but culture. yeah. अच्छा, बट अनुराग कश्यप तो इस कैटेगरी में इस टाइम तक तो नहीं फॉल करता था क्योंकि Of स्कॉर्सेसी उसका इंस्पिरेशन था, बट ही वाजंट एज बिग एज हिम. हिज No, फिल्म्स no. वर गेटिंग But you ask your average college-going dude. Hmm. Till this time, he'd made Black Friday, Gulal. गुलाल वाज आफ्टर दिस. No, Gulal was before this. गुलाल वाज आफ्टर दिस, Are क्योंकि you इसमें sure? एक छोटा सा सीन है जब वो दारू पी रहा होता है जिसमें गुलाल का प्रोटैगनिस्ट अपना हेलमेट उतार के रखता है. तो अनुराग Okay, कश्यप ने correct. छोटा सा डाला था ट्रिविया की सेम यूनिवर्स है, गुलाल hadn't come out by then, but उसके बाद I आई थी think गुलाल. Gulal and Devdi came out in the same year, 2009, सेम ईयर, if I'm हाँ, not बट wrong. इसके कुछ महीने बाद आई थी गुलाल. Right, and he'd done Black Friday. So I think नो by स्मोकिंग then, also had come out by then. No Smoking also come out, and Yeah. Panch had been banned. 5 had been So banned. there was this. There is this trivia, हाँ. 1, 2, 3, 4, 6 because 5 was banned, Banned, yeah. but which was later confirmed by अनुराग कश्यप. ऐसा कुछ नहीं था, तुम लोगों ने अपने मन से ही बना लिया था. वो 5 didn't sound right while singing, that is why they said 6. That was the reason. पटना के प्रेस रिलीज ने. Yeah. But until that, मतलब आपकी पिक्चर बैन हो गई, मतलब आप लेजेंड बन गए ना कि ओ भाई इतनी वायलेंट पिक्चर बनाई इसने कि पिक्चर दिखाने ही नहीं दी उन लोगों ने. So I think there was a bit of that until that time, and then it only grew when Gangs of Wasseypur came out and all of that. Yeah. But yeah, you're right. Chirag, where were you when you first saw Devdi? I was in Chandigarh. So I Okay. was visiting a Oh, relative जिस the- चक्कर में a lot of things had coincided. जब Right. मैं पिक्चर देख रहा था, एक तो मेरा ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, ठीक है. हाँ. तो और मेरे को किसी जो मेरे चंडीगढ़ में कजन थे उन्होंने रेकमेंड करा, देवडी देख बहुत मजा आएगा. चंडीगढ़ में देख रहा था. ऑल्सो आई हैड शिफ्टेड इन 11th standard to DPS आरकेपुरम, which was the MMS school. Scandal. Yeah. Yes. The Scandal school on which Kalki's character is based. हाँ, Yeah. तो वो The same school. Yeah. सेम जो स्कूल, दिखाई- वो ओ, कॉरिडोर हाँ. वगैरह का उनने कलर हाँ, स्कीम हाँ. सब कुछ मैच करा हुआ है. ड्रेस कोड भी टाई नहीं रखा है, बट वो ड्रेस कोड सिमिलर सा ही है. Right. हाँ. तो बहुत ही मैं हर उस पे देख रहा था कि ओ कितना कुछ मेरी लाइफ के Wait, आसपास Urjita, आ are रहा you है. aware of the DPS MMS scandal? No. Okay. Chirag, would you like to tell her what the scandal was? तो मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि किस बैकग्राउंड में शूट हुआ था, क्योंकि इसके बहुत सारे रूमर्स हैं कि स्कूल के अंदर ही शूट Yeah. हुआ था. एक था कि किसी के घर पे शूट हुआ था, क्या हुआ था. हाँ. बट उसमें 2 बच्चे थे जो हाँ. दोनों स्टूडेंट्स ही थे, आई थिंक DPS आरकेपुरम के. एंड देन दैट MMS गॉट लीक्ड. So a girl, I mean, this is again pre-smartphone. Internet is also like just. N72 हाँ, phone जो वाले जो उसमें. फोन आता था उसमें there was some guy who shot a girl performing a sexual act on him, Okay. and you can see the girl in the videos asking him not to do it, and he's saying कि मैं अपने personal use के लिए बना रहा हूँ. And that went viral before viral was a thing. हाँ. And at that time eBay करके एक साइट हुआ हाँ, करती हाँ, थी हाँ. जहाँ लोगों ने बोली लगाई थी उस क्लिप के ऊपर.
And then this actually led to a lot of changes in our cyber laws and sexual harassment online and all of that. So Kalki's character is based on that. That was the scandal that happened okay, हाँ. is taken और directly taken from बहुत her, yeah. रूमर्स थे उस टाइम पे कि दे लेफ्ट द कंट्री, किसी ने बोला नहीं वो लोग को सैट उन्होंने क्लियर करके कोई बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज चले गए, ये भी रूमर था कि द फादर ऑफ द गर्ल किल्ड हिमसेल्फ, Yeah. which is what they've weaved Acha, into this oh. story. Yeah. The thing is, I've grown up hearing these rumors, so when that part came, I was like, I love this story way more than either of them. That's interesting because I mean, by the time you saw it, it's now a common thing to Yeah. shoot things and distribute it. But back then it was a huge thing because there was no Yeah. WhatsApp, there was no Yeah. like video भाई distribution. in the site. film Mahi Gill goes to a photo to, center, to develop her. हाँ, वो Yeah. photos खींचती है. इसको सच्चा प्यार बोलते हैं, हम भाई करेंगे सही- इतनी मेहनत सही में नहीं. भाई इतना कोई अगर दूर जाकर तो मैं कहूँ तुम चीटी कर लोगे लंदन में ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah. We'll come to that. Let's rewind to, so you were in Chandigarh, you had a breakup, you were yeah. watching the movie, and was it like तू देख के बाहर निकला and you were like भाई ये तो मेरी कहानी है. नहीं Also, तो how देखो, old were you? Sorry, how old were you? 11th में कितने 16 या 17 साल के होते हैं, अच्छा, ठीक है. अच्छा. तो ऑल्सो योर ओपिनियन देन इज वेरी कलर्ड कि इसने ऑलरेडी किसी को डेट करा है तो पता नहीं है मैं इसको डेट करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, ये वाले yeah, दिस वाज अ yeah. बिग डील कि Yeah. सब लोगों का जिनका रिलेशनशिप फर्स्ट रिलेशनशिप है बहुत वो चल रहा है और वो ये सारे स्टीरियोटाइप इसमें चैलेंज ही कर रहा है. तो देखो मैं पूरी तरह से अब्जॉर्ब तो नहीं करी थी पिक्चर उस टाइम पे कि ये क्या क्या कुछ दिखा दिया, बट थोड़ा सा ऐसे समझ में आया था कि ओ मैं देव से रिलेट कर रहा हूँ और देव गलत है पूरा का पूरा इसमें. Right. बस इतना समझ में आया So था. you got that at least. हाँ, Yeah, इतना the समझ guy में is आया an था कि asshole. हाँ हाँ क्योंकि काल्की ही इसको फिर शी स्टार्ट्स कॉलिंग हिम आउट कि Right. you're a very narcissistic Yeah, person, you don't love anybody. तो ऐसे लगा ऐसे क्यों बोल रही है यार काल्की, कितना सच्चा प्यार तो कर रहा है ये सब कुछ. Were you aware of the Devdas story that it's about this guy? Yes. Okay. हाँ, but I had not seen it क्योंकि Right. वो टीवी पे आती रहती थी, but हाँ. just was a very long movie. Hmm. तो क्या देखूंगा मैं वो मतलब जो भी बिट्स एंड पीसेस में देखा था वही देखा था, लेकिन देवदास का कॉन्सेप्ट पता था और ये Right. पता था कि ये मर जाता है एंड में, जो कि हाँ, इसमें नहीं इसमें मरता है. हुआ. हाँ. क्योंकि आप लोग को मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि अनुराग कश्यप फेल इन लव विद काल्की ड्यूरिंग द Right. शूटिंग, हाँ. तो ही डिसाइडेड टू चेंज द एंडिंग इनटू एन ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग क्योंकि उसको Okay. शूट के दौरान प्यार हो गया था, तो उसने कहा कि नहीं फिर प्रोटैगनिस्ट को मरना नहीं चाहिए, शुड गेट अ हैप्पी एंडिंग. Oh. Oh. Slightly unbelievable, but ये उसने खुद से बोला है किसी इंटरव्यू में, अनुराग कश्यप somewhere ने. I read it. Somewhere you read It's it. actually quite believable, but I was So, thinking. अभय देओल ने बोला था कि कॉन्सेप्ट उसी का है ना, उसका है वो, बोल हाँ, रहा था, उनका modern- लड़ाई वड़ाई उसी चल रही है. मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ देवदास उसको करना था कि जिसमें जो मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर है, ही यूज्ड द वर्ड मिसोजिनिस्टिक वे बिफोर इट वाज कूल, गाइस. दैट्स व्हाई ही सो Abhay Deol, the original feminist man. या तो उसने फिर बोला था कि वो उसको मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ देवदास करनी थी, एंड ही वांटेड टू शो कि ये मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर को पनिश किया जा रहा है उसकी मिसोजिनी के लिए, एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड हिम टू डाई इन द एंड. बट अनुराग कश्यप ने कि ये भाई ज्यादा हो रहा है. नहीं, मतलब प्यार हो गया भाई. नहीं, और प्लस अनुराग कश्यप is also he poured everything that he had done in his life into this film. क्यों बहुत टाइम पहाड़गंज में उसने बहुत भटका, बहुत नशे करे, तो वो सब कुछ उसमें बहुत वन साइडेड लवर रहा है, तो उसके चक्कर में दारू पिया, वो सब कुछ है इसमें. और इन जनरल उसको बहुत जजमेंट मिलता था ना सोसाइटी से कि ये कैसी पिक्चरें हैं, तुम आजकल के यूथ के लड़के कुछ भी बकवास करोगे, तुम्हें वल्गर चीजें करनी है, नशा करना है. और उसको तो तीनों प्रोटैगनिस्ट ऐसे ही हैं जिनको सोसाइटी से बहुत सारा जजमेंट मिलता है, राइटफुली सो और रॉन्गफुली सो, वो मतलब तुम वो अग्री या डिसएग्री कर सकते हो. बट तो ही हैड पोर्ड सो मच ऑफ हिज पर्सनल लाइफ इनटू इट, तो उस टाइम में लगा था ऐसे करना होता है, हार्ट सब कुछ बता देना होता है. या बट देन बाद में आता था इंस्टाग्राम पे तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें फॉलो करते हैं तो और तुम कुछ भी नहीं डाल सकते. जस्ट फ्रेंड्स, That's- बेस्ट फ्रेंड, ये शब्द यूज करने पड़ते हैं. That's what the close friends list is for, right? हाँ, बट फिर भी दुनिया को तो बताना ना. Yeah, I, that's like true. there are some personal stories that you want to share with the whole world, but हाँ, not जो with the limited embarrass- set of people who follow you. So फिर many, we all have बहुत so सारी चीज़ many होता है कि तुम personal फिर कोई stories that. रिलेशनशिप पे बिट डालो, फिर एक्स तुम्हें रीच आउट करेगी कि ये क्या मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो, फिर हाँ, उसको हाँ. झूठ बोलो, नहीं एक दूसरी एक्स के बारे में, फिर दूसरी एक्स से हाथ जोड़ो, भाई तुम प्लीज बोल दो कि तुम्हारे बारे में, ताकि मैं फिर चिराग फिर कवर अप करके वीडियो में डाल देता है कि मेरे इतने रिलेशनशिप्स चेंज हो गए ये बिट लिखते लिखते. that's true man, that's अच्छा true. अच्छा. But Talking from personal experience, Yeah, aren't yeah. you, Chirag? Yes. Okay, let's come to. So I saw this film. I was 21 when I saw it, and I was Oh, only wow, I was peak age. in my transition from dentistry to doing something creative.
और मेरा यही था भाई, ये तो अनुराग ने चेंज कर दिया भाई सीन। अब हर पिक्चर ना ऐसी है कि एजी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स 5 out आए of- थे, तो I मेरे think- को इसलिए एकदम याद है Correct, कि yeah. मेरे को किसी ने क्लास में दिखाया था कि परफेक्ट फिल्म आई है, तो हाँ। मुझे सोचा क्या बकवास कर Hymns रहे of India ने 5 out Five of out of 5 five stars stars, दिए। five stars, that's true. Wow. एंड आई वाज लाइक कि कोई लिप सिंक नहीं कर रहा है, और लाइटिंग देखो क्या मस्त है, देखो कितने डार्क कैरेक्टर्स हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई ऐसे ही लिखना है मेरे को ये। एंड देन यू आर राइट, गुलाल एंड देवडी केम द Yeah. सेम ईयर, एंड I was that dude, bro, who was like, "Bhai, why aren't more people watching this kind of cinema?" I don't mind people passionately expressing their love for such movies. I Sure. mind you saying तेरा खराब है मेरा सही है, और Yeah. तू रीजन भी नहीं दे रहा क्यों तेरा सही है, बस ये बोल रहा है कि तू चूतिया, तेरे को नहीं पता. I don't like that वो condescending tone. Okay, I have so a problem with I that. remember I saw the movie. I bought the audio CD of Dev D. I would listen to the songs all the all time. songs are great. All songs are great. Amit Trivedi's breakout film. Just the milestones of this. Mahi Gill's debut film, Kalki's debut film. The first Anurag Kashyap film that released without any controversy. Till then, Black Friday was controversial. Panch was controversial. This was his big breakout. Also first Anurag Kashyap romantic film. Kind of, yeah. Even though the romance is pretty fucked up, but nonetheless. Man Marziya was slightly like Oh, Man Marziya was out and out romantic, I think. out and yeah. out romantic, and also वो देवड़ी की तरह dark नहीं थी. Yeah. It was Yeah. nice. So, so we've discussed Sanjay Leela Bhansali's Devdas. Yes. Chirag, I think you said I've you've not not seen any other Devdas नहीं. apart अभी भी नहीं adaptation. देखी अभी भी नहीं देवदास. देखे मैंने, हाँ. You should watch it. सिर्फ देवदास जितनी पिक्चर में दिखाते हैं देवडी में वो देखी है, जब चंद्रमुखी डांस कर रही होती है वो देखी हुई है मैंने. Can we draw parallels between both the Sure, movies now? yeah. तो मुझे ना एक वो बहुत सही लगी थी चीज़ की. सो इन देवदास देयर इज़ अ सीन इन विच मतलब जब भी वो पारो उसके घर पे आती है, सो वो हायरार्की सेम दिखाई है कि उधर मैनेजर की भी- बेटी हाँ होती है मैनेजर वहाँ, मतलब वहाँ हाँ. पे वो मैनेजर की बेटी नहीं होते, बट वहाँ पे उनसे नीची जात वाले होते हैं. हम्म. तो वो उधर भी सो देवदास वहाँ पे देवदास के पेरेंट्स बोल रहे होते कि ये नीची Exactly. जात की है, I think तू नहीं that's कर the सकता. key difference. हाँ. एंड यहाँ Yeah. पे इन देवडी इसके पापा तो चाहते हैं, कह रहे हैं चाहते हाँ. हैं करे, भाई- एंड देवडी में ये अभय देओल बोलता है कि तुम मैनेजर की बेटी हो. बट ये एक्चुअली नहीं. में अभय देओल को उससे अंतर नहीं पड़ता है मैनेजर की बेटी, उसको बस ये अंतर पड़ रहा होता है कि ये सुनील के She साथ पहले slept with इन्वॉल्व थी. someone before, Yeah. yeah. But then you तो he still had uses, it, yeah, no, at he some- uses that as an yeah. excuse, क्योंकि she calls him out on his hypocrisy. वो हाँ, कहते हैं हाँ. कि कब बताया तेरे को सुनील ने, हाँ. साले तू घुमाने गया रसिका को मुझसे पहले हाँ. और फिर मैं करूँ तो ठीक है, कह रहा है. फिर वो उसको एक दूसरा कार्ड प्ले करना हाँ, पड़ रहा हाँ. होता है, तो इसलिए वो बोल देता है कि Correct. मैनेजर But की then बेटी है. also तू गुस्से में भी जो भी बोल रहा है, there is always a little truth behind that thing also, ना, जो तू इतना गुस्से में बोल रहा है, it means it was there at the back of your mind. So I Somewhere. like the I- fact that even right from the first scene in Devdi, वो जब छोटे बच्चे होते हैं, तभी से उसको asshole बताया है कि हाँ, मैं हाँ, हाँ. अचार लाना बोल Yeah, तो yeah, घास के yeah. साथ खाऊं. Yeah. You know, he's like that. हीरे नहीं रड़े मेरे मुंह पे, मेरे मुंह को क्यों दे रहे? तो हाँ. वो बचपन से ही उसको ऐसे ट्रीट हाँ, करता सत्तू है. बोलता है अपने पापा को. Exactly. And that keeps continuing. भाई But मैं सत्तू वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स है फिल्म में, क्योंकि वो कुछ भी देवडी बोलता है, कहती क्या हो गया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, लंदन जाके बेकार हो गया है. कह रहे तुम्हारी लंदन जाके चॉइस खराब हुई, विस्की जगह वोडका पीता है, चिकन जगह हाँ, फिश खाता है, हाँ. और असली लड़कियों की जगह पतली पतली लड़कियां घूमता रहता है. but yeah, you were drawing parallels. सो एक तो ये था, फिर दूसरा चंद्रमुखी कि वो तो दिखाया कि वो चंद्रमुखी को देख देख के वो सोच रही है कि मैं चंदा. Correct. Yeah. And Meta. also I like how कि जब भी वो when she enters the can I call it the prostitution? Yeah, sure. Yeah, so even वहाँ पे भी, so I know इट इज एन इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो It is कहता है an- देखो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई पढ़ाई, कर लो, सब काम काम के टाइम Yeah, काम. भाई that's वो why. देख के मुझे लगा था कि 12th तो सब जगह सीरियसली लेते हैं ये लोग, हाँ. चाहे कुछ भी हो. So उसका भी कैसा कि we know this is bad, we are already expecting उसके साथ गलत चीजें होने हाँ. वाली है, but then वो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखा देते हैं, where the guys like कि तुम अब तक अंडर एज हो, so you focus on your studies now, and I was like कि यार सही बंदा है, and you like नहीं बट गलत चीजें हो और रही है. उसका जब फर्स्ट डिवीजन आता है सब मिठाई भी लाते हैं, तो व्हाट अ हाँ. लविंग एनवायरनमेंट. Yeah. That's what she's not shown as tortured. We are not shown that this Yeah. Chunni character is forcing her into Exactly. prostitution. भाई कोई भी वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है पिक्चर में कि ये पिंप है तो ये ऐसा ही होगा. हाँ. क्या सबसे आइकॉनिक लाइंस भी चुन्नी की ही है. I know, yeah. भाई मैं उसके बाद से जब भी मेरे से कोई पूछता है ना दिल्ली में कहाँ जाना है पीने, मैं कहता हूँ यार कोई ऐसी जगह जाओ जिसका नाम नहीं हो, क्योंकि पीने वाली अच्छी जगहों के नाम नहीं होते. So I have a question about that. So when we were discussing the Sanjay Leela Bhansali Devdas also, when he goes to the kota,
of course, Kota has been shown as this very opulent sort of, larger than life building, जिसमें बहुत सारी lights जल रही हैं and everyone is decorated and everything. And I don't think real Kotas are like that, but it's to symbolize कि भाई देवदास अब ऐसी जगह जा रहा है where he feels कि हाँ I'm at home. But in Devdi, it's like this combination of these seedy alleys and gullies, but it's also very like neon lights and like the furniture and curtains are very colorful and all that. So without passing any judgment, have you guys been to any such establishment where, or is it just Anurag Kashyap's imagination? नहीं तो जो Because you उसने said- जो हाँ. लेंस दिखाई हैं वो पहाड़गंज है, ठीक है, Okay, क्योंकि उसके बाद okay. से मैंने वो पीने वाली जगह ढूंढने की कोशिश करी, Okay, मुझे हाँ. नहीं मिली थी ऐसा कूल सा जिस पे शटर पे नॉक करो, बट वो जो एलीज वगैरह दिखा रहा है वो पहाड़गंज है. Okay. और दूसरा जो नियॉन लाइट्स और पीछे ग्राफिटी वगैरह बनी हुई है वो इसलिए है क्योंकि उसमें पिक्चर में भी बहुत सारे अंग्रेज दिखाते हैं ना, तो Right. जितने भी ऐसे हिप्पी जो अपने आप को ढूंढने हाँ, आते हैं वो हाँ. पहाड़गंज वगैरह ही पहुंचते हैं नशा हाँ, करने. Right. तो वो लोग फिर अपना कुछ एक एज एन आर्टिस्ट छाप छोड़ जाते हैं रूम में हाँ, कि मैं यहाँ हाँ. पे रुका हुआ था. इस चक्कर में वो इतना वो नियॉन लाइट्स Got वो it. ग्राफिटीज वगैरह वहाँ कैसी से छाप आती हैं. छोड़ जाते हैं? छाप मतलब सुपरमैन छाप और But of course it's a flight of fantasy ना कि अंदर जाके सूट में लोग नाच रहे हैं और वो You didn't answer if you have ever been to any of these. me? No, yeah. I have never been to such an establishment. I would like to visit, not for, but just as like जैसे धारावी में वो टूर करवाते मैं हैं ना. जज नहीं कर रही तो हूँ, देखो जैसे मैं- जैसे देवडी उसमें वो कई बारी किसी को बुलाता है और फिर वो कहते हैं स्टार्ट करो, कहता नहीं स्टार्ट नहीं करना है, बैठो चुपचाप, फोटो परेशान मत करो. तो हाँ. मैंने ऐसे तो सोचा है कि तुम्हें ये सब चाहिए ना कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, क्या है, तो तुम पे करके अगर सिर्फ बात कर लो या फिर तुम उसको बोल दो बैठे रहो, मैं तुम्हें थोड़े से जोक सुना दे रहा हूँ, मेरा माइक कैंसिल हो गया आज. तो तो वो ये डबल चार्ज करेगी. You हाँ, do तो realize that, right? ये सब कुछ मैंने कंसिडर करा है, बट या दैट इज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन कि आज सारे माइक कैंसिल हो रहे हैं. वो बोलेगी everyone's a horde Grace, we just sell different parts of ourselves. Yeah, वो That's तुझे true. ऐसा बोलते. तो या दे वुड एग्री विद मी Yeah. कि वी अंडरस्टैंड वेयर दिस नीड इज कमिंग फ्रॉम. Basically, Yeah. मैं पूछना चाह रहा हूँ, does Delhi actually have these kind of places where women inside are dressed in school girl outfits and talking dirty to men on the phones? I don't know what As the only North Indian on this panel, I Chirag. don't know what you expect फ्रॉम नॉर्थ इंडियंस कि हमने कैसा लाइफ जिया हुआ कि अगर कोई नॉर्थ से आया तो बता ही देगा कि हाँ ब्रदर में तो ऐसे ही होता है. सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, डिड नॉट नो दिस इज अ प्री रिक्विजिट बिफोर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. Like, have you guys पीटी seen, वाली कपड़े पहने होते हैं, स्कूल वाले नहीं. have you guys seen Girl in the Yellow Boots? आई हैव. So in that they shown the massage parlor, Yes. ठीक है, हाँ. which acts as a front for that. I can believe कि हाँ massage parlor में पीछे होता होगा ऐसा सब. But this is a little too fancy. But like you said, not hard to believe क्योंकि also they in the film when she starts working they acknowledge her past also क्योंकि उसकी सीडी रखी होती है उसके Yeah, रूम yeah. में, है ना. Oh, really? हाँ हाँ. तो Okay. वही Oh, अभी right, हाँ, प्ले बाद में करके देखता है, रियलाइज correct, करता है कि correct, अच्छा yeah, इसका ये बैकग्राउंड है क्या है. yeah. तो अगर कोई उस फेटिश के साथ आ रहा है तो फिर इट हाँ, इज पॉसिबल कि correct. फिर वो मतलब स्कूल गर्ल के लिए तो ऑप्ट करेगा ही. Correct, yes, fair enough. This is a very tricky topic. या मुझे भी थोड़ा ऐसे constantly हाँ, I'm क्या बोल- fidgeting. यार, I'm just I'm on the because- edge of my क्या- seat. क्या right बोलना now. चाहिए, क्या वो करना because चाहिए. Chirag was like they were very accurate about the DPS school and everything. तो मतलब इसमें भी क्या रिसर्च की होगी अनुराग Imagine कश्यप Kalki is like, hey, remember that MMS? I'm of that MMS fame, sir. ने? Also, you have any other parallels you want to draw? नहीं फिलहाल तो Okay. नहीं. I think एक हाँ, मैं although I have not seen देवदास, उसमें ऐसा लगता था कि जो चुन्नी बाबू है he actually cares about देवदास in that film कि तुम मरने वाले हो. ये तो बस इसमें इसको शुरू से एक्सट्रैक्ट ही करना चाहता है, correct, इससे सारे yeah. पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता Yeah. है. बट ऑल्सो इन दैट देवदास शाहरुख खान वो रिस्पेक्ट करता ही नहीं था चंद्रमुखी की. नॉट वंस डिड ही लुक एट हर एम्पैथेटिकली. सो चंद्रमुखी इज लव फॉर हिम. आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक कि क्या देख के इससे प्यार कर रही है, कुछ भी नहीं है. ऐसा भी नहीं कि पारो को एम्पैथेटिकली वो देख रहा है, नहीं. इनफैक्ट एट वन पॉइंट शी टॉन्ट्स हिम आल्सो. तुम्हारी ये हरकतों की वजह से पारो ने किसी और से शादी कर ली. सो आई एम लाइक, यू नो एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद थिंग, बट ऑफ कोर्स यू कैन नेवर जज एनीबॉडीज लव. यू कैन नेवर नो व्हाई पीपल फॉल इन लव. इसमें तो चंदा empathizes with him क्योंकि Yes, he's हाँ. grieving and he's in a lot of pain. And also he always treated her, I feel like in the whole movie he's the only guy who has treated her with respect. मतलब वो उसे स्टार्टिंग में से अच्छे से बात कर रहा है एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ फ्रेंड काफी बट गुस्से में बात करता है उससे गुस्से स्टार्टिंग में. में. बट गुस्से में बट स्टिल हाँ. वो गुस्सा तो भी मिल रहा है ना. Disrespectful नहीं होता है, the हाँ. last time a guy got mad at her, he shot himself in the head. So You mean her dad? Yeah. Okay. भाई yeah. बहुत heavy scene है वो. तो and I know. I think those parts though have not aged well. The whole bit where her parents are asking her to stay in the house and not go outside.
ऐसा लगता है कि it almost belongs to another movie because it's a little overacting and little It is believable. नहीं, It is believable. Also, she But I calls think- them out on it कि क्या हो गया, मैं why can't I go out? yeah. I'm not going I'm not going to suck every cock that Yeah. comes my Yeah. way. Oh Or भाई, exact क्या I'll words. tell you- गलत मूवी चूज कर ली मैंने। भाई मैं एक लड़की Sure. को मैसेज करता So- था ट्यूशन में, मेरे घर वालों ने मेरे से काइनेटिक छीन ली थी मेरी। क्या Guys, बात कर रहे हो तुम? I'm not हाँ। doubting that Indian parents will react in such a way. I'm just saying the performances in that bit, the parents seem very hyper as compared to the rest of the movie, where people are acting more naturally. Like the Okay. whole Paro and Dev bit in the Hmm. beginning in Chandigarh is very natural. Like वो फेवरेट there's- चैप्टर मेरा। exactly. पारो वाला Yeah, चैप्टर इज द yeah. फनीएस्ट the चैप्टर। the मतलब वो उसको देव asshole है. The best way to show it is he's rolling a joint and there's Sardarji coming and he says Sat Sri Akal and he just says हाँ and he keeps on rolling the joint. I'm like this is such देव an तो asshole. स्टार्टिंग से जब वो और पारो मिलते हैं, ठीक है, हाँ। तो देव को कोई अंतर नहीं पड़ता है, पारो के पापा देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो वापस जाके मजाक कर रहा होता है, अरे सूंघने में भी हल्दी जैसी है, चखने में भी हल्दी तो है। हल्दी तो है। हाँ, तो पारो का इकलौता कंसर्न होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने प्लान करा कर लेंगे, बट यहाँ मत करो, मेरे मम्मी पापा पकड़ लेंगे। Which is Exactly. a fair concern. I And know. I hate how she was in charge of arranging the bed and bedroom भाई and वो everything. बहुत अच्छा सीन था वो। I'm like, अरे तू देव चूतिया, तू भी तो कुछ करना। सही And में। also Paro is so much in love, she doesn't even realize कि अरे ये लड़का तेरे लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तुझे ही पूरा स्ट्रेस, सेक्स के लिए स्ट्रेस कौन लेता है यार? नहीं I बट mean, वो मुझे काफी Clip अच्छा मिल लगा। गया मैत्री for this episode. Sorry. the sex part should be the stress की will it happen, won't it happen? But यहाँ पे मतलब arrangement से लेके भाई वो अच्छा, पूरा तो- मंडप बिठा तो But के it's द Chandigarh, रीजन not- वाज हाँ. क्योंकि Yeah. वो वहीं पे रह रही थी, तो Exactly. दो तीन जो उसको रास्ते वही फिगर आउट कर सकती थी कि वो सुनील अपने फ्रेंड से रूम मांग ले, Yeah. या फिर ये जो लोकेशन था कि खेत में वो कर ले। और वो देख के मेरे को इतना इंप्रेसिव लगा था कि वाह कितना Enterprising है. एंटरप्राइजिंग हाँ. है, कितना चार्ज ले रही है कि हाँ. भाई मेजर Yeah. रीजन पता नहीं, अगर फेमिनिज्म आ जाएगा तो लड़कों को काम आधा करना पड़ेगा, लोग ये नहीं समझते कि अच्छी बात You है heard भाई। it here first, guys. Yeah, but at least he could have been there with her rather than just like ordering her. हाँ, Oh, किया कि नहीं, रूम मैनेज किया कि नहीं, अबे क्या है ये? But that's the whole point, na? I That's know, his I character. know, that's why I'm But I have a saying, yeah. question. Do you Hmm. guys think so? The thing that makes this version of Devdas so relatable is in that whole first bit, the Paro part. They are just fucking horny, okay, and they just want to do it, and they can't find a place, which is the most relatable thing for any Indian in every Understandable. any city. तो गांव Yeah. तो छोड़ ही दो. But do you guys think in this version do Paro and Dev really love each other, or they're just lustful? Paro is obsessed with पारो him. तो 100% प्यार करती है, हाँ, और वो जाते और टाइम भी जब वो लड़ाई हो जाती है उनकी, जब हम्म. उसको उसकी औकात वापस दिखा के जाती है, तब भी वो रोते हुए जाती है। Yeah. तो Right. बस वो शेड्स पहन लेती है तो लगता है कि Yeah. ओह व्हाट अ नाइस वे टू हाइड टीयर्स। उसको हाँ औकात दिखानी होती है, but also like she शी जनरली feels hurt. कपड़े धो के जाती है भाई, Yeah. कपड़े तो मैं किसी के लिए नहीं धोऊंगा। औरत अपने पसंदीदा मर्द के कपड़े धोती है, हाँ, सही में। ऐसे किसी के भी कपड़े नहीं धोएगी। वो भुवन सिंह सर, भुवन क्या नाम, भुवन सिंह को क्या बोलते हैं, भुवन जी के लिए भी नहीं धोते। Yeah, yeah. मोहन जी कौन है? भुवन जी उसका उसके पति। पति, ओ अच्छा हाँ. जो बुढ़े उम्र में होंगे। बिस्तर में नहीं है. But you're saying Dev was a fuckboy because Yeah. it's not until she sends him a nude where he's like मैं वापस आ रहा हूँ. हाँ भाई, Yeah. उसका Yeah, कोई yeah, कजन या वो- भाई की शादी हो रही होती है, कितनी सारी चीज होती है, उसमें नहीं वापस आता है। मुझे वो जब तक खत्म नहीं हुई शादी तब तक रियलाइज नहीं हुआ कि ओ इसके भाई की इसकी भाई की शादी है। शादी है वो। How good is Mahi Gill? I think she was excellent in this, considering it was Too her good. debut. Yeah. And also she's playing this character who is like very boomfart and very out there in a small town. I have a plot question. Do you think do you think Paro did sleep with Sunil? No. दे हिंट एट इट, बट हम्म. वो हमें भी सेम उसमें डालने के लिए कि Right. हम भी वो सेम जजमेंट पास करें, हम्म. और बाद में वो क्लैरिफाई कर, क्योंकि अगर इफ समथिंग हैड हैपेंड बिटवीन देम, तो जब उसके घर जाती है तो उससे बोलती है ना, क्या करा मैंने तेरे साथ कुत्ते, बताइए क्या करा। डंडा लेके. हाँ, डंडा लेके जब उसका घर जला देती है, बहुत ही अच्छा सीन कि तूने Yeah. मेरा घर जलाया, मैं तेरा घर जला दूंगी। Right. अगर कुछ हुआ होता तो वो उस टाइम पे वो एडमिट कर लेती। आई थिंक जिसकी तरफ वो हिंट करते हैं ऐसी वेग सी चीज होगी कि उसने कुछ बोल दिया Make out or कि something, नहीं हाँ. मेक आउट, अरे वेग नहीं मतलब ऐसे बोल दिया होगा कि वो अगर देव नहीं होता तो शायद मैं तुझे हाँ. डेट कर लेती, ऐसा टाइप का कुछ बकवास हिंट करा होगा जिसको वो पकड़ के बैठ गया था वो Correct, yeah. सुनील। Harmless flirting. हाँ, हार्मलेस फ्लर्टिंग, Yeah. कुछ ऐसा इनोक्युअस सा करा होगा जिसको उसने सुनील ने अपने मन में बहुत बड़ा बना दिया हार्मलेस था। फ्लर्टिंग में नहीं, आई फील लाइक उसने सुनील की काफी मदद ली होगी सिलेंडर विलेंडर उठवाने में एट सम पॉइंट, और सुनील को लगा होगा कि यार इतने प्यार है। हाँ, ये तो तो वो बंदी. कुछ लड़के होते हैं ना जो पकड़ के बैठ जाते हैं, तूने उस दिन मुझसे प्यार से बात की थी, अब तू बॉयफ्रेंड लेके आई है, तो ऐसा तो Yeah. और सुनील इंटेंशनली सैबोटाज करता है, Correct. क्योंकि जैसे Yeah. उसको पता चलता है पारो रूम ढूंढ रही है, तो वो उसके सामने बैठ के कि सर हाँ. फुल गांव तो पलंग तोड़ देती है, आई एम सो सरप्राइज सर जी, Correct, correct, बहुत था। We have to talk about Nawazuddin Siddiqui.
who is part of the band, who sings the song Emotional Atchachar. Chirag, do you remember how big a deal this song was when it Yes. came out? Also, when I was in 11th, इसका एक X-rated version भी आया था, which was Really? rumored that they only sang it क्योंकि the voice sounds Very similar, हाँ. very similar. हाँ. But हाँ, वो What X-rated were the version. lyrics? So, बताऊँ? हाँ. बताओ. सपने देखे जन्नत पे के पर मिट्टी में मिल जाए, उसका हाँ. ऑल्टरनेट था गर्लफ्रेंड ऐसी चालू मिल गई गोटे मुंह में आए. Oh, volume 2. हाँ, वॉल्यूम 2 Volume टाइप जैसा है, 2. जो कि वो डिनाई करते कि नहीं हमने नहीं बनाया है. तो जैसे I mean, the एक लाइन film- थी, उस माँ के लोड़े के घर थी एक मोटर कार. तो हाँ. एक एक्स रेटेड वर्जन भी इसका आया था, तो ये गाना वैसे भी पॉपुलर था और हमारे Of हॉस्टल में course. एक्स रेटेड वर्जन भी इसका That's बहुत right. पॉपुलर था. That's a great way to- Also एक्स रेटेड वर्जन is very problematic. I have just told you the Yeah, two yeah, most no. Okay, non Chirag. problematic We're not lines. saying you made it. you Yeah, just heard it. Yeah. The movie itself has 2 versions of this song, so who इमोशनल knows? अत्याचार रॉक वर्जन. भाई ऐसा कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ जिसमें मैंने रॉक वर्जन बजा के नहीं प्ले करा. बहुत ही अच्छे गाने हैं वो सारे के Yeah. सारे. उसमें जो सेकंड बंदा है ना, वो मैं हमेशा लगता था मुझे सुनील ग्रोवर है. It's not. It's not. It's Yeah. the Yeah, yeah. AD of the film. कोई Yeah, नितिन yeah. लिख के लाया था, भूल गया. तो We'll find out. he Should I got find cold. out? रोको मैं लिख के लाया था उसमें. He got cold feet one day before the shoot. तो फिर अनुराग कश्यप ने बोला यार नवाज को बुलाओ, ये किसी से नहीं हो सकता है. Who तो फिर got cold feet? नितिन चैनपुरी जो इस फिल्म अच्छा. का एडी था. इसमें Okay. बहुत सारे उसने अपने एडीज यूज करे हुए हैं. वासन बाला भी आता है ट्रम्पेट लेके. Right. Mhm. The casting band is के- by Vasan Bala, who हाँ. also casted Urjita in a promo. She has mentioned once This is before. such a clickbait. अगर मैं बताऊंगी वो क्या था तो ऐसे disappoint हो गए सब लोग. So he was supposed to do this song alone. हाँ. अच्छा. और फिर ही okay. गॉट कोल्ड फीट. तो फिर उसने नवाज को बुलाया और फिर उसको गिल्टी फील होने लग गया, तो उसने कहा नहीं कर लेते हैं, तो दोनों ने करा था फिर उसमें. Okay. So you might know this, but a little trivia about this: the Chandigarh airport that they have shown is actually It's the a- railway station. It's a railway station. which they've shown as an हाँ, airport. वो भी जब मैं पिक्चर देख रहा था मैं कहा ये देखो देखो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. Also, this sequence, the Tauba Tera Jalwa, Tauba Tera Pyar, is influenced by a sequence from the film Om Dar Badar. जो कि बनाई है कश्यप स्वरूप के Kashyap पिताजी ने. Swaroop के father ने. Kashyap Swaroop is a friend of ours, comedian. Kamal Swaroop is his father, who made this cult film called Om Dar Badar. Where say that sequence is available on YouTube, and it's pretty much frame to frame almost the same. The song sequence. Cool. We'll take a short break at this point. When we come back, we'll talk about the Kalki portion of the movie and the climax, which I have a lot of questions about. So we'll see you on the other side of this break. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. Listeners, presenting to you Club Saris Says, the premium tier offering for our podcast. Club members will get exclusive Cock and Bull episodes every Monday, extended and unfiltered versions of the guest episodes, access to the Club Saris Says Discord server, and audio offerings such as ad-free episodes and early access to guest episodes. Also, members get to decide the topics of the live episodes and get their name on the producer's slate at the end credits. On Cock and Bull, Cyrus and Abbas, that's me, are joined by Owen Roncon, Chief of Business Live Events at Book My Show. We discussed Italy banning the use of English language and the antics of an American couple on YouTube for getting viewership. On Pulyabazi, Khyati, Saurabh and Pranay discuss how with changing geopolitics and technology, many government ministries have to deal with increasing levels of complexity. And on the Filter Coffee podcast, Karthik Nagarajan speaks to Malika Ravikumar, an author and history buff. She talks about her love for history and how schools have made it all about dates and wars which students find boring. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, please spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You will also find our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: LIC of India, Yono SBI, Cash Free Payments, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. And we're back on Has It Aged Well with our guest Chirag and my co-host Urchita. What did you think of Rasika though, जो उसको टेम्प्ट करती है देव को कि I think again भुवन जी की बहन. it's one of those she came with a purpose. She saw a hot guy. Throughout the film, everybody is just very impressed with him that he's a London return. है ना? Yeah. सब लोग की बात, ओ Yeah. लंदन से क्या बात करो लंदन से, और वो I think at some point काल्की भी impress हो जाती है, उससे ब्रिटिश accent में बात करने लग जाती So है. which I think is believable because I remember ये ऐसी तैसी democracy Sanjay Rajora. He said that once he also went abroad to study and he had to come back because his father had died.
So it's like at the funeral, the gaonwalas were asking me कि हवाई जहाज से हवा में उड़ जाता है. No, so they were more interested in that लंदन में क्या हो than the रहा है? fact that his father has passed away, right? Okay. So we still live very Yeah. removed from the small town Yeah. India. So I'm very sure that Everybody is impressed except Sattu. Sattu doesn't care. सत्तू ने तो पैसे भरे. हाँ, सत्तू ने पैसे अलावा भरे। सत्तू ने टिकट बुक करके रखी थी. लाइक कल ही जा रहा है ये हाँ. विलायत. कल जा रहा है. also liked how so they never so even though Rasika's character वो ऐसा लगता है हम काफी judgmental type ही है मतलब उसका पूरा पेज but they never look down upon her. नहीं नहीं They also like show उसका redemption भी where she is like तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी हाँ कि तुम्हें हम सही सिर्फ करना कहीं है. और Yeah. जा नहीं सकते हैं. And also like I understand where that is coming from because I had seen many girls who thought that कि you know शायद this is how you get boys attracted to you like by wearing sexy clothes अगर and just हमारा में गेम है कि वो हम पहले कूल एक्ट करेंगे फिर बता देंगे हाँ. एक्चुअली तो मैं लूजर ही हूँ मैडम आ जाओ अभी घर पे. तो उसका भी मुझे समझ में आता है कि why she did whatever she did Yeah. and even then like उसका पता है वो true test of character I feel was when she didn't like उसकी जो माही गिल होती है पारो वो उसी के भाई से शादी कर रही होती है. she could have told him कि इसका देव के साथ चक्कर चलाया था but she was like no जरूरत ही Yeah. नहीं पास्ट है. इज पास्ट जाने दो Yeah. कोई वो नहीं है. yeah और उसका मोमेंट ऑफ क्लैरिटी बहुत बढ़िया होता है. उसके साथ बैठी होती है ऊपर देखती है महिलाओं में एम हिलाओ, कटा होता है और हिलाए. yes. भाई इतने छोटे छोटे Yes. जोक्स इतने अच्छे हैं. yes अनुराग yes. कश्यप के इतने सारे एपिसोड जब वो स्टार्टिंग में know, जब yeah, फोन सेक्स yeah, कर रहे होते हैं yeah. उसमें उसने एक जोक डाला हुआ है कि मैं पागल हो रहा हूँ मैं पागल हो गया मैं भी पागल हो रही हूँ तू तो हो रही है मैं तो हो चुका हूँ ऑलरेडी मैं भी हो गई हूँ ठीक है. तो इसका उसने- इसका 11 मिनट हो गया कल की. उसने फोन सेक्स के बीच में एक जोक डाला हुआ है. yeah So because that's the small things, I made a note of two things. We are fast forwarding a little bit, but in the end, the Sardarji driver that he has, when he Like a asks him, fish. Do you drink? Like a a fish. fish. And then he cons him. Then he finds him again, and then when he's going, he's like, "Beta, sab theek to hai na?" हाँ, वो अरे कहता है, sorry यार. sorry यार. It's a very such a Indian thing. Yeah. And the guy at the end, जो आखिर में वो बार में बैठ के खा रहा होता है, पी रहा होता है, उसको फिर उसको पीटता है. पैसे नहीं होते, हाँ. जो पीटता है भाई. I think he's भाई the उससे- best character in the whole film. वो The cool way he acts. उससे ज्यादा अग्रेसिव विलन मैंने वो कहता है कि ये घड़ी ले लो इससे कवर हो जाए. हाँ. नहीं हो पाएंगे. वो उसके पास जो एक छोटा सा कैमियो उसमें अपना फुल विलन वॉइस यूज करा उसने. Exactly, वो एक यूं करके jacket निकाल एक ढूंढना फुल जरा. ओवर एक्टिंग भी करता है मुक्का और मारते टाइम. उसका वो बिगिनिंग फ्रेम जिसमें वो ऐसे जब भी देव ऐसे वॉलेट ढूंढ रहा होता है तो इज लाइक चलो उसकी शक्ल पे लिखे चलो आ गया so you know so you can Yeah. see that this is not new for him. Yeah. ऐसे काफी लोग आते हैं ना I'm sure आते होंगे तो उधर और भी वो वो बटवा ऐसे ढूंढ रहे हो, you know, he knows. मिला देखो, चलो, मिला चलो बैग में चेक करो इसके बैग में like imagine तुम्हारा वॉलेट नहीं मिल रहा so now suddenly this person is in charge of everything you own. Anything you guys want to talk about the Kalki portion? I think she's really good in this film. There's few moments where it kind of comes across it's her debut, but that whole section where she's seducing someone on the phone by talking in French and talking in Tamil and उसको वही talking दो in उसके Hindi. अलावा लैंग्वेजेस आती थी आती तो है, उन्होंने हाँ. फुल यूटिलाइज यूटिलाइज कर कर लिया. लिया. तो कल्कि yeah. के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई लाइक हाउ दे हैव सो ऐसे कभी भी कोई एमएमएस स्कैंडल होता है या इफ एनीथिंग कम्स अप सो यूजुअली इट इज द गर्ल हु इज शेम इवन इन केसेस वेयर बोथ यू कैन सी देयर दोनों के चेहरे देख सकते हैं फिर भी हमेशा लड़की Yeah, को of शेम course. किया हाँ जाता बट है इस फिल्म में पहले And- लड़के को अरेस्ट करते हैं एक तो वो अच्छे से हाँ, दिखाते that हैं कि is ये good. गलत है. Yeah. सो एंड आई हैव सीन लाइक इन डिस्कशंस आल्सो लाइक कितने भी यंग होंगे कितने भी ओल्ड होंगे द फर्स्ट थिंग लाइक आफ्टर यू गिव ऑल द एम्पैथी टू द गर्ल बुरा हुआ द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन एवरीबॉडीज माइंड्स इज कि और उसको क्या जरूरत थी जाने की उसको लड़के के साथ घूमने की क्या जरूरत थी काल की बहुत अच्छे से कॉल आउट भी करती है कि ना तो मेरा Yeah. कहीं चेहरा न्यूज़ पे दिखाया था ना ही कुछ वो था. Exactly. तो तुम लोगों ने सबने डाउनलोड करा विच इज हाउ यू नो दैट Right. आई वाज द Right. पर्सन. Exactly. हाउ एम So- आई द रॉन्ग पर्सन इन दिस? Yeah. It reminded me of, have you seen Love, Sex or Dhoka? Yeah. In that there is a similar case where a scandal happens and then in the end so they make a clip in a shop and there are two characters talking and the shopkeeper says कि यही किया था उन्होंने यहाँ ये टेबल पे and then he asks something कि आपने कहाँ देखा ना जी हम नहीं देखते ऐसी चीजें वो बता भी रहा है उसको क्या हुआ फिर बोले ना हम नहीं देखते ऐसी चीजें एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ जजमेंट ये जो लड़कियां होती है जो ऐसे 10 साल अपने बड़े लॉन्डो से लॉन्डो के साथ घूम रही होती है कि अरे क्या स्कूल में जरूरत है स्कूल में ऐसी होती जो School में it जो is सबसे very हॉट होते हैं वो ऐसे होता common. है इनका बॉयफ्रेंड आर्मी में. मैं कहा आर्मी में कहाँ से आ गया भाई इसका बॉयफ्रेंड इट क्या इज है? वेरी कॉमन एंड सो इनिशियली जितनी भी आउट ऑफ लीग लड़कियां होती स्कूल में वो ये होता था कि इनका बॉयफ्रेंड College तो में एमयूएन में हाँ, करता है. हाँ
कोफी अन्नान का दोस्त है, ऐसे कुछ रैंडम एज बड़ा होएगा और कोई ऐसी अनअचीवेबल जगह पे होएगा, फिर ठीक है भाई मैं तो फिर एक चूतिया हूं 11th का, मेरे को कहां डेट करेगी, ठीक है सॉरी. Exactly, and also like I remember like being one of those who used to judge these girls for dating. ऐसे गंदे लौंडों के साथ कौन जाता है? So and then later on I figured that इंसान को जहाँ प्यार और attention मिलता है वो चला जाता है. और बाइक लेसन्स, Bike. जहाँ पे Yeah, बाइक लेसन्स and मिलते like हैं. when you're a teenager, you equate attention with love. अटेंशन प्लस So- एवरीथिंग दैट इज कूल, की ड्रिंकिंग, Yeah. खुद कोई व्हीकल चलाना, की जो भी चीजें इलीगल हैं वो कोई अगर तुम्हारे को कोई सीनियर कराना है, अगर मतलब मैं मेरा कोई सीनियर बड़े भैया हैं हाँ. वो ही मेरे को कराना है, तो ही मेरे को इतना टेम्पटिंग लगता है, भले ही मैं पता है कि ये मेरे कजन चूतियां हैं. लेकिन हाँ, अगर हाँ. कोई फिर वो एज अ बॉयफ्रेंड वाले उस रोल में आएगा तो तुम्हें और ज्यादा लगेगा कि Yeah. ओ वाओ कितने एडवेंचरस हो आप, मोटरसाइकिल चलाते हो. I also want to talk about that one scene where Dave enters a bus drunk and sits next to a woman. वेरी नाइस भाई. And that's Yeah, also a हाँ. very small Anurag Kashyap thing. where the इतनी wo- शराब पीते हो, कितनी स्मेल आ रही है तुमसे. हाँ, कोई जरूरत नहीं थी, वो ना तेरे घर की शराब पी रहा है, ना वो तेरे घर पे आके माथा टेकने वाला है. What is पब्लिकली your स्मेल आ रही problem? होती है ना उससे, बस स्मेल ये आ है. रही है, बट लाइक तुझे ठीक है तो यू कैन जस्ट आस्क देम कि कहीं और बैठो, बट फिर भी वो पूरा टिपिकल इंडियन पेरेंट, लाइक आई कुड इमेजिन माय पेरेंट्स और माय अंकल्स अगर तुम मेरी औलाद होते तो मैं मार लगाती है करते, अगर उसकी हाँ. टिकट खा जाता है. Exactly, dude. I'd Like, forgotten क्या होता है, क्या इसमें building up और क्या होता है. He eats her ticket. And then the TC comes and is वो like, कैजुअली होती टिकट खा "आ गया. गया?" इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि अरे ये झूठ बोल रही है, नहीं लेके आई टिकट. उसको कुछ बोलने की भी जरूरत ही नहीं है. एग्जैक्टली, लाइक ऐसा भाई ये कोई खाने वाली चीज है, सोन पापड़ी खाओ, टिकट क्या खा रहे हो. But there are some very ferocious Delhi aunties that I have experienced the few times I've been to Delhi. I was in a metro and P car था, काफी भीड़ हो गई विकास थी. बैल बैठा हुआ था क्या उसमें? नहीं. मेट्रो में पिक्चर में बैठा होता है विकास बैल मेट्रो में. Oh, that's him? या Oh, उसके साइड में damn. बैठे उसे देख रहा होता है. Okay. P car था and auntie was very gentle. मतलब she came in the general men's compartment, but सब she's very gentle. She's talking to the person. आप कहाँ उतरोगे जी, आप कहाँ उतरोगे, ये वो ऐसा. फिर I think राजीव चौक या कोई आया. Pandemonium. राजीव चौक is their दादर basically. सब हो गया. तो पीछे से किसी लड़के ने ना कुछ कमेंट मार दिया कि आंटी ने रास्ता रोक के खड़ा है ये वो. एंड द फ्लिप आई सॉ, चूतिया जैसी बात ना कर, ठीक है. मैं खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, स्टेशन आएगा तो उतर जाऊंगी. ओके, शी सेज दिस, देन शी टर्न्स बैक टू द गाय शी वाज टॉकिंग टू. बोलना पड़ता है ना, ऐसे बोलने नहीं दे सकते ऐसे. लाइक वाओ, आंटी का रेंज है पूरा. भाई जो कि माही गिल का भी ऐसे दिखाता है कैरेक्टर की, वैसे बहुत जेंटल लविंग है, बट जब उसको कोई चैलेंज करे या हाँ. कुछ करे तो बिल्कुल ही मैं नहीं करना शादी. और फिर जब वो हैंड पंप पे कह रही हाँ मेरे को मालूम है, दिख रहा है बाल्टी भर चुकी है, और फिर वो दरवाजा तोड़ के निकल जाती है I know, वहाँ से yeah, आगे. yeah. वो दरवाजे तोड़ने का एक पहले देयर इज अ रेफरेंस टू दैट वेयर आई थिंक देव एंड पारो आर टॉकिंग और पीछे कोई एक लड़का गिरा देता है Oh. ये दरवाजा, बट इट्स आउट ऑफ फोकस, सो हमारा ध्यान नहीं जाता वहाँ. सो इट्स काइंड ऑफ मेंशन देयर. वी एस्टैब्लिश्ड के चुन्नी वांट्स टू sort of fleece Dev, but do you think Chunni cared about Chanda, of the Kalki character? I Because he don't- gives her gifts and he sort of, takes her in when... नहीं, आई थिंक ही डिड स्पॉट दैट देयर इज समथिंग बिल्डिंग अप बिटवीन देम, और वो दोनों तरफ से काटने की कोशिश करता है. जब वो चंदा को जाके बोलता है कि तेरे बारे में केयर नहीं कर रहा है, सिर्फ ले रहा है तेरी, तो एक तो वहां से उसको वो उस तरफ से वहां पे फूड भरता है. एंड ही इज द वन हु पुट्स इट बैक इन देव्स हेड कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, दिस इज समबडी हु वर्क्स इन अ ब्रॉथल. क्योंकि वो उस टाइम पे चंदा इज नॉट वर्किंग, बट ही ब्रिंग्स समबडी, उसको वहां पे बैठा के रखता है और उसके सामने ही उससे ये सब बुलवाता है कि मेरे सारे टेस्ट ये हैं वो हैं, ताकि देव के मन में ये वापस से रीइंस्टेट हो जाए. और Oh, okay. That guy's hired by Chunni. मतलब चुन्नी brings him as a client again, Got it. क्योंकि Yeah. till the time Dev is Right. staying with Chanda, वो she's not working. sleeping with someone else. हाँ, yeah. तो वो उसको वापस से लेके आता है चुन्नी, उसके रूम में वापस से To make बैठाता him है. realize. हाँ, और फिर उसी टाइम पे she quits her बट job ये तो also. वही बात होगी ना कि आई विल बी नाइस टू यू एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग फॉर मी. Yeah. So, which is also something that many people follow irrespective of Oh, the so field they you're are saying a part कि of. he's wrong on him as a person, but you understand it as a boss, कि तुम मेरा I- business affect कर रहे हो. Yeah, I mean I understand as in अगर चुन्नी बाद में बोलता कि सच्चे प्यार करने की जीत होती है, ऐसा अगर डायलॉग में तो that would have been very unbelievable. Like तेरा धंधा चल रहा हाँ है हाँ, तो चुन्नी तो वैसे ही शेडी कैरेक्टर ही दिखाया स्टार्टिंग से. Yeah. So
like that. So I don't know how I'll connect these two things, but Dave Chappelle के एक special में उसने, I think this was equanimity. बर्ड रेवलेशन है Bird जिसमें वो आइस क्या कहते हैं जो पिंप द Pimp पिम्प से वाला, वो करता yes. है. So there's the pimp वाला story that Dave Chappelle says in his special कि वो pimp तुमको I'm paraphrasing of course कि pimp वो जो नई लड़की आती है उसको बहुत मारता है, फिर बाद में खुद ही मलहम लगाता है. So लड़की को लगता है कि ओ वो मलहम लगा रहा है, he cares for me. So I Right. think it is somewhere like it is like that कि मतलब you in your mind your brain gets conflicted कि अच्छा ये लड़का जो मेरे लिए इतना केयर कर रहा है ये मुझे मार रहा है तो गलत कैसे हुआ. So it is like that I feel. That's how domestic abuse also works. Right. Okay, can I ask a slightly controversial question? तो So, अब तक के सवाल कितनी क्या प्लेन वनीला बात है Um, उसकी. so which means when Chanda is with Dev, as long as she's with Dev, like Chirag mentioned, and we also remember she's not doing business, she's not sleeping with someone else. Yeah. But the moment he gets this notion that के वापस इसके पास clients आने वाले हैं, वो फिर गुस्सा हो जाता है. So we're still the क्या कहना चाहिए, the structure of the film is still saying के as long as the guy wants the girl, he just wants her to be with him. Or was that an idea too forward to? नहीं नहीं, देव की स्टार्टिंग से इनसिक्योरिटी यही Right. रहती है Right. कि हैज दिस पर्सन बीन विद समबडी या ये पर्सन इज नॉट फेथफुल टू मी. Hmm. ऑल्सो द रीजन Even if it is a sex worker. even if it is a sex worker, but उसके मन में तो now we are मतलब they start dating, they share a emotional moment जब वो Right. भूल भूल के बाद जाके उसको pretends to be her father. Which is also oh my god I remember मैं कल भी जब वो मूवी देख रही थी वो मोमेंट आया मेरे आंखों से आंसू आए. मैंने हाँ, बोला वो अरे यार emotional ये moment मूवी में रोना नहीं Which है. moment? ये मूवी तो में when she's talking about her father कि he could have just forgiven me Right. instead of killing himself, Yeah, बोलते थे बेटा yeah, जाने दो जो हो गया हो गया. और फिर वो देव pretends to be her father. I found it a little corny कि ये क्या कर रहा है, but मतलब No, saw it I was saw how done in the it would have right meant a way. lot for her. yeah It was daddy issues taken to the next level. Anyway, they comment about the word sex worker in the movie itself, हाँ where she says के कमर्शियल सेक्स वर्कर हाँ. CWS बोलता है मेरे CSW. को. CSW सॉरी. ये रंडी बोलना NGO आउट ऑफ वाले- फैशन हो गया yeah, है. ये NGO वाले भी वो तो एनजीओ वाले सबटाइटल में आता है, वो बोलती है एक कोई कुत्ते वाला आता है. oh yeah एक कुत्ते वाला आता है और नीचे एनजीओ वाला आता है. ओ मैं Yeah. कहा रौनक रजानी. ये रौनक रजानी के बारे में बात कर मेरे रहे हैं. दिमाग में भावेश वैलानी है because he says NGO की बार मैंने कभी बिस्किट नहीं बांटे. Ronak Rajani, past and future guest maybe. Check out our episode with him on Rehna Tere Dil Mein. Okay, so now let's come to the Dev part of it. Now I have a lot of questions about this. So he kind of loses his crew again. And हमें ये दिखाया गया कि वो गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी के नीचे 7 लोग आके मर जाते हैं. Is what the thing is. Don't you think this film almost brushes over that aspect? And then it fast forwards once very very soon to his lawyer briefing him Oh, about so what to you're say. saying they should have stayed in the morality of killing people accidentally Yeah. for a longer time. I mean- this is a love story. Dev is a flawed character, but they're just trying to explore that part of his character arc. कि But it's a guy who's killed 7 people. Should we not have stayed on that a little more? He's killed people. but hit and run केस नहीं होता ना, ये बस दारू पी के वो कर देता है. एंड अगर अब मेरे को मॉरलिटी वाइज अगर आप एक्सीडेंट में किसी को मार देते हो एंड यू स्टे देयर एंड यू कॉल द पुलिस और फिर आप पे केस चलता रहता है, आई थिंक मॉरली दैट इज बेटर देन हिट एंड रन केस. Right. Yeah. तो उसमें पॉइंट दैट ट्राइंग टू मेक इज कि ये इतना हैवी इन्फ्लुएंस में है दारू और ड्रग्स के कि इसको कुछ वो ही नहीं है, सेंस ही नहीं कि क्या सही कर रहा है गलत कर रहा है. लोग मार दिए इसने, इसका बाप मर गया है यहाँ पे, तो भी बस इसकी अभी डिपेंडेंसी चल रही है. सत्तू सत्तू right? की डेथ सत्तू हो जाती है. dies, हाँ. unfortunately. और सत्तू का वो भी अच्छा दिखाया कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट बाप होता है, इसके चक्कर में आउट ऑफ गिल्ट वो कि नहीं तू गाड़ी खरीद, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ वो बताता भी नहीं है कि मैं बीमार चल रहा हूँ. तो वो भी एकदम टिपिकल की जो स्ट्रिक्ट डैड बट अभी फीलिंग गिल्टी फॉर मैंने इसको हॉस्टल Right. भेज दिया था, ये कर दिया था. सो ये मुझे ना एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था कि इन देवदास जब भी देवदास गया था यूएस गया था, तो जब भी देवदास की फ्लैशबैक में दिखाते हैं हिज डैड आल्सो नेवर लव्ड हिम. सो इन ऑल संजय लीला भंसाली मूवीज किसी ना किसी को तो डैडी इश्यूज है, तो इसमें भी देवदास को डैडी इश्यूज, स्ट्रॉन्ग डैडी इश्यूज होते हैं. एंड सो इन द मूवी देवदास it was implied that he was sent but it was never specified कि होता है कि नहीं. और देवडी में दिखाते हैं कि इसको लिटरली भेज रहे हो because like you can't be Right, seen right, here. yeah. So that I noticed कि अच्छा इसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसको भेजा जा रहा है, ये कोई ग्रेट आदमी नहीं है, just so that
because when in Devdas when this guy comes back, Shah Rukh Khan, तो सब उसकी तरफ की अरे क्या बात है देव बाबू, and he has also this air around him. In Devdi he doesn't have that air around वो तो him. irritate हो जाता है कि can you stop talking in that accent. Yeah, he just has the regular Delhi boy arrogant air around him. So तो जब ये चंदा की स्टोरी पढ़ता है और उससे बात करता है when he gets perspective कि अच्छा she's gone through way more than I have, जो कि एक इसमें भी करते हैं वो उड़ता पंजाब में, क्योंकि टॉमी सिंह, मैंने वही भी लिखा था कि टॉमी सिंह ऐसे रोता हुआ आता है कि तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है, फिर बताए सिर्फ मालूम है मेरे साथ क्या हुआ है, एंड देन ही जस्ट एम्पैथाइजेस विद हर, और फिर उसको नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है. तो उस टाइम पे आई थिंक उसको थोड़ा सा फैमिली का रियलाइजेशन हिट होता है कि इसके डैड नहीं है, मॉम हैज अबैंडन्ड हर, तो मेरे पास एटलीस्ट मेरा वो फैमिली है जो मेरा एटीएम की तरह एक्ट कर रहा है कि मैं जब उनको कॉल करता हूँ पैसे भेज देते हैं BMW. Both the love stories are very similar. Like a girl with actual problems falls in love with a guy with a spoilt brat who thinks that he has problems. Yeah, who thinks he has problems, but they are very solvable. Of course, not mentioning the hit and run, not including the hit and run, but yeah. And then I'll quickly run through the events. He goes to his dad's funeral. He snorts cocaine there. He's given some money to give to the lawyer. Which was not surprising that he snorts cocaine there, क्योंकि उससे पहले तक भी the reason I was doing it was to cope up with pain. Yeah. Right. Another form of pain. तो फिर उसको लगता है कि अच्छा यही मेरा practice है, यही तो, और वो उसको सिखाती भी है चंदा कि I have moved on, कहता है to what, to coke. Yeah. तो उसको समझ में आता अच्छा heavy trauma मतलब coke करना होता है. And then he uses the money given to him to give to the lawyer to party with the Sardarji driver. And then I'm a little confused. So the driver cons him, right? उसको जंगल में छोड़ देता है. Is he robbed of money? Yeah, he's robbed of money. But then we see him asking for a lift from a guy on a bike. And then this guy just gives him, and then we see him drinking with him, spending the night in a campfire, going to some Everest base. एक कहीं बहुत सारा कैश एक उसमें बंडल में देता है, वो चोरी कर लेता है. इसके वॉलेट में तब भी थोड़े बहुत पैसे तो रहे होंगे ना, तो और वो सरदार जी थोड़ा तो कह रहे हैं अगर एंड में सॉरी यार वगैरह बोल रहा है, तो इतने पैसे छोड़ दिए होंगे कि वो पहुंच जाए वहां से. और उस टाइम तक ये भी दिखाने लग जाते हैं कि इसकी बॉडी पे भी वो सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं शराब पीने के. तो लोग पिटी के चक्कर में उसको कि वहां से वो बाइक वाला छोड़ देता है कि कहाँ से जा रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ थोड़ा बहुत फेवर कर देते हैं. बट ही हैज सम मनी, मतलब वॉलेट वगैरह में तो रहता ही है. But it's just the bike राइडर्स गुडविल के वो उसको लेके जाता है. There's a lot of people in mountains, वो आपको बस ऐसे ही करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, दिखा देंगे, छोड़ देंगे, खा लो हमारे घर पे आके खा लो, ये सब कुछ. I feel like from a finance guy's perspective, this whole movie is a story about how this guy goes bankrupt. Step by step process of how to lose all your money and everything you own. And then he has a close encounter with an accident where he's by the way, this film has so many shots in an STD PCO, which I had totally forgotten. I've completely gone out of fashion. He's about to pick some coins and a car almost hits him. Is that the moment where he's like, this was me to the people I killed? I thought he thinks that this is going to be me. If I continue this path, मैं भी मर ही जाऊंगा. अगर अनुराग कश्यप ने प्लान करा था कि ये मर जाएगा, तो इन्हीं सब किसी पॉइंट पे मरने वाला होता वो. बट उसको वो रियलाइजेशन कभी कभार आपकी लाइफ में बहुत मेजर बीट इन हो जाती है, जिससे सारी शराब उतर जाती है. तो आई थिंक दिस वाज दैट मोमेंट फॉर हिम कि ओ मैं अभी इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं सिक्के निकाल रहा हूँ इसमें से, और मैं अभी इतने चिंदे रीजन के चक्कर में मर सकता था कि मैं पीसीओ से सिक्के चुरा रहा था. Have you had a moment like that in your life? नहीं. Okay. When देवडी पहले देख ली ना जवानी में. Yeah. और SDD अभी होते ही नहीं ना, पीसीओ होते ही नहीं, so that's why. And then he goes back to the Momo place. By the way, I mean, credit to Anurag Kashyap. This was the first movie, I think, where I associated Delhi with steaming momos. With momos, steaming momos, and then it became a cliche. But he goes back to her favorite Momo place, finds her there, and she takes her. Finds, मतलब goes with the intention that I will find her. क्योंकि वो बोल देता है ना, कहाँ देख रहे हो, आ जाएगी सर. और वो उसको आई थिंक उसको पता होता है, वो आगे कहता है वहाँ जाके मोमोज सर्व करके आओ. और वो आई थिंक सबसे रोमांटिक सीन है फिल्म में, जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिकॉज बोथ ऑफ देम स्माइल, तो वैसा हो जाता है कि आई थिंक वेरी गुड. जो भी हुआ था कुछ, जो कि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं था उनके बीच में, वो बस देव अपने ईगो में चला जाता है. That momo guy asking him to serve her momos is still better than a guy coming to a girl and say कि दीदी भैया ने आपको चॉकलेट दिया. Also the momo guy helps him because उसने टिप दिया होता है heavy. 60 रुपए का मोमो होता है, 100 रुपए दे देता है वो, कहता है रख लो, कहता है थैंक यू सर. तो अगर small acts of kindness go a long way. If you're going down that path कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं शराब में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, just tip well. Tip well, yes. Yeah.
And then she takes her in, and the last scene is she says that we have to go for a court hearing, and they are on a bike, and that's where the film ends. Also he admits कि you were right, I am a slut, मैं कभी पारो को प्यार करा ही नहीं था, तो वो admission of guilt भी important होता है फिल्म में कि अच्छा अभी relationship continue कर सकते हैं. Also We मुझे missed- बस हाँ, एक go ahead. क्लैरिफाई करना था, क्लैरिफाई नहीं, मुझे पूछना था कि वो मुझे बोलती है रिंग तुमने मेरे लिए छोड़ी थी ना, वो उसने नहीं छोड़ी थी, वो गलती से छूटी थी ना वहाँ पे. उसके लिए रिंग निकाल के रख, उसने दिमाग में सोच लिया था कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ चंदा इसको, को, okay, हाँ, okay, लेकिन हाँ, फिर हाँ. गुस्से में फेंक जाता है रिंग की मैं इसको कैसे प्रपोज करूँ. Okay, चंदा को okay, कि हाँ. पारो को? चंदा. रिंग पारो के लिए आई हाँ, होती है, exactly. हाँ, और वही. वो फिर उसके पास रखा रहता है, और फिर जब वो कहता है कि पारो से प्यार, वो पूछती है पारो से प्यार करते, कहता है हाँ हाँ हमेशा करता रहूंगा, फिर कहता है बड़ा लव यू टू चंदा, तो कहती है और सच अ स्लट. तो वही सिंबॉलिक ये रहता है ना कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कि ये प्यार मैंने पारो के लिए तैयार करा था, बड़ा वो चली गई भुवन सिंह जी के साथ, तो अभी भुवन सिंह जी के चंदा को दे दिया जाएगा. Yeah, we missed that one part where Paro comes to see him. I think it's a great scene. वेरी कंफ्यूजिंग सीन आल्सो. Why? तो जब वो उसके लिए कपड़े वपड़े धो रही होती है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, कहती है लोग प्यार करते हैं, करना चाहते हैं क्या, कहते हैं मेक लव टू मी, और फिर वो बस लेट जाती है और वो कहती है लेकिन कुछ करो नहीं. वो बहुत ही अजीब सा सीन था कि समझ नहीं आता क्या पारो कन्फ्लिक्टेड है. I think the idea was she was in her mind to let him do whatever he wanted, but when it actually came down to it, she तो couldn't. हाँ, Yeah. Yeah. तो Well, I was right. Yeah. But I've made this note, so उसमें भी एक छोटा सा रैंडम जोक डालता है अनुराग कश्यप, जब वो सामान मंगवाती है ना कि पेस्ट ले आओ सर्फ ले आओ, तो वो उसको दे रहा होता है, कहता है मैडम सब कुछ तो ब्लू है, एक चीज हरी है. कि एक वो कोई बार उसमें हाँ. बर्तन या कुछ धोने का बार होता है. हाँ. Also when she calls him outside के दरवाजा खोलो, he wakes up with the हाँ, 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 vibration. हाँ, वो भी बहुत funny है. I feel like that whole scene was shown पारो का यहाँ पे आने का just to show कि पारो अगर अभी भी ये पूरा गिल्ट का एडमिशन कर देता और बोलता कि मैं तुम्हारे तुमसे ही प्यार करता, तो शायद पारो भाग भी जाती उसके साथ. नहीं वो वो उसको एडमिट तो देती है, वो- एडमिट तो कर देता है, मैं गलत था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई थिंक कुछ तो But बोल वो देता है, प्यार बट he says प्यार करना चाहता हूँ. वो तो He बाद doesn't में say- बोलता है. Yeah, पहले but- स्टार्टिंग में बोल देता है कि पारो मैं अभी तुम्हें प्यार करता हूँ, कहती जाके कब नहा लो सबसे हाँ, पहले, exactly. कुछ करती है. And I think आई डोंट थिंक वो वापस शी केम बैक विद द इंटेंशन कि आई विल गेट बैक विद हिम. शी जस्ट केम बैक बिकॉज़ शी वाज कंसर्न्ड कि ऐसे बिल्कुल मर ही ना जाए ये इंसान. तो concerned and to give him a fuck you. वो जो end Yeah, में yeah, that little fuck you that she gives. ओ शी गिव्स दैट फक यू व्हेन ही स्टार्ट्स When he- इंसल्टिंग yeah, हर yeah, हस्बैंड Yeah. कि वो बुढ़े तेरे को खुश रखता है, बुढ़े होंगे उम्र में. बेड में तो टाइगर. So the last point I made was Paro comes and cleans his clothes in a scene. Then at the end, Chanda cleans him literally, gives him a Yeah. bath at the end. So does this mean men will always be Raja Betas and the women will have to take care of them no matter what? Yo, speak for yourself. I think it means कि तुम कितना भी बदन और कपड़े क्लीन कर लो, अंदर से तो गंदे ही रहो. Hi, oh, moral of the story. नहीं, आई थिंक एक बार तुम जो नहीं बोला. आई थिंक तुमने जितने भी क्राइम्स पाप कमिट करें लाइफ में, एक बार अगर एक लेडी आपको क्लीन कर देंगे तो you are और आपको कोर्ट ले जाए तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, पुरानी बातें जाने देते हैं. What do you think of the ending, Chirag and Urjita? मैंने really I was thinking this movie is an alternate ending to actual Devdas. Yeah. You like the ending? Yeah, I am confused about why they show the end credits उल्टा. वो कभी समझ में नहीं आया था. I think it's मैं just a very... जिंदगी भर ये सोचता रहा था कि अगर मुझे कभी अनुराग कश्यप मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा. फिर एक बार कुछ दिल्ली में कुछ एक फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी टाइप का कुछ था जिसमें वो आया था, तो मैं भूल गया पूछना उससे. मैं उससे मिला और फिर मतलब मैं वेरी बिग फैन कह रहा ओके. तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं अनुराग कश्यप को. तो मैंने बोला कि अगर मैं आपके बगल में खड़ा रहूं थोड़ी देर तो चलेगा. ठीक है. तो उसने कहा मैं सिगरेट पी रहा हूँ, जब तक मेरी सिगरेट खत्म होगी तब तक खड़े रहे. So cute. तो मेरे को ऐसा लगा था ओ वाह. फिर मैंने फोटो ले लूँ, कह रहे जो करना कर, बस मैं सिगरेट पीने तक हूँ यहाँ पे. और फिर मैंने फोटो खींच के भी इंस्टाग्राम पे डाली थी लुक हु आई मेट टुडे. बट फिर मैं बस बाद में फिर मेरे को यही था कि अरे फक मैं पूछना भूल गया कि वो उल्टे क्यों आते हैं, क्योंकि बाकी सब मैंने इतनी बार देख ली या फिर वो ट्रिविया पढ़ ली कि मेरे को समझ में आ गया चाहिए इस रीजन के लिए करा गया था. बट वो उल्टे क्रेडिट्स क्यों आते हैं नहीं पता. Can I give my suggestion? Can I give my opinion? What if so when you drink a lot, तुमको hangover होता है और तुम बेड पे ऐसे लेटे रहते हो तो सब उल्टा दिखता है. Like the first thing you see Possibly. after a hangover is also उल्टा everything. Cinematically, this was the first time they showed a
somebody drunk और वो ट्रिपिंग सीन जिसके लिए स्टार्टिंग में डैनी बॉयल हैज बीन थैंक्ड क्योंकि वो ड्रग्स दिखाना चाहता था बट बिना दिखाए क्योंकि इतना सब कुछ पहले प्रॉब्लम हो चुका था उसके उसमें तो उसने सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो ब्लर्ड होता है ये सब कुछ हो जाता है और फिर वो जो उसको डैनी बॉयल ने रेकमेंड करा था कि एक कैमरा तुम यहाँ पे लगा के एक बंदे को ट्रिप करते हुए दिखा सकते हो. So the DOP of the film is Rajiv Ravi, who is Anurag Kashyap's go-to DOP. He's shot all his films. He's now become a great filmmaker in his own right for Malayalam films. And my theory about the credit thing is now his life has been set right. Till now it वो was उल्टी चल रही होती है और upside फिर वो एंड में down. चंदा उसको Now सीधा it's, कर देती है. Now it's gotten on the right Nice. track. और मे बी लाइक कि कितना भी ठीक हो जाए तो भी लाइफ इसकी उल्टी चलेगी. नहीं सीधी हो जाती है क्रेडिट्स उल्टे रोल होते हैं और हाँ. फिर घूम के सीधे हो जाते हैं. Okay. Yeah. Also, I'd forgotten that they're going for a court hearing. I was like, hey, how does he get away with killing 7 people? He But doesn't, now, he doesn't. yeah, अब वो yeah, चलती रहती है तो रियलिस्टिक रोमांटिक एंड तो यही है ना कि सब कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है बट हाँ. बेटर है पहले से Yeah, क्योंकि yeah. अगर अपनों Find का somebody who will attend court hearings with with you. you. Yes. that's the moral. अगर अपनों का साथ हो तो किस बात का कोर्ट फिर संभालने किसी आशीर्वाद जज को. आटा. I have a question. Why does Paro? So when जब भी वो initial scene दिखाया था माही गिल का जब भी वो उसको slutword बुला रहा है कि तू सुनील के साथ सो रही थी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि even after that it looks like she aggressively wants to marry him. She does. And मेरा ये था कि इतना वो बोलने के बाद भी तुझे क्यों शादी करनी है and then she's also mad at him but she also wants to marry him so then I realized that okay maybe this is just my एक तो वो प्यार करती है वो तो है ही but also like another thing that was there in my head that when he called her a slut वो होता है ना लड़कियों का कि like he called me a slut but she wanted to feel less like a slut that is why she wanted to marry him because एक बार तुमने जिसके साथ सेक्स कर लिया अगर उसके साथ शादी कर ली so then तुम्हारा slutty पना वो सारा equalize हो जाता अच्छा ऐसा होता है क्या? है yeah Wow. I have a different working theory in this. When he calls her a slut in that खेत तब वो क्लियरली बोलता नहीं है कि सुनील ने मुझे कुछ बोला है क्या हो रहा है तो शी ऑल्सो गेट्स कन्फ्यूज कि मे बी इट इज समथिंग दैट आई डिड मे बी आई डिड समथिंग वेरी अग्रेसिवली जिसके चक्कर में हर ओपिनियन चेंज his opinion changed about me so he's not fallen out of love with me it's just some incident something that one bad move that I made और फिर उसके बाद जब वो openly उसको बोलता है कि सुनील के चक्कर में सुनील के सर पे मैंने बॉटल फोड़ी थी और तू मैनेजर की बेटी है that is when she decides कि मेरे को झल्ली बोल रहा है मेरे बाल बिखरे रहते हैं पहले मैं बाल बांधूंगी फिर मैं भुवन जी से शादी करूंगी फिर तेरे को तेरे कपड़े दूंगी और तेरी औकात दिखाऊंगी. नहीं उसके बाद ही वो aggressively वो तोड़फोड़ करते हैं ना after the खेत Sunil scene. खेत के आने के बाद से This is after Sunil scene, सुन no? क्योंकि खेत के आने के बाद अपने पापा को बोलती है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी अच्छा, सुनील okay, से देव से ही शादी करूंगी जो भी करना है देव के साथ करूंगी. फिर जब वो जाती है रसिका के साथ देव को पकड़ती है उसके बाद फिर ओ हाँ, तुरंत right, जाती है right, बाल makes सबसे पहले sense. बांधती है और फिर भुवन जी से मिलती है. Favorite movie है चिराग की चैलेंज मत कर. ऑल्सो Sorry भुवन जी. Sorry. सुना है आप बिस्तर में सुना बड़े है जवान आपके हैं. 2 बच्चे हैं. जी 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 बहुत प्यारे जो बच्चे बहुत हैं प्यार बहुत करते हैं प्यारे आपकी बच्चे बीवी को. हैं. और मेरी एक बीवी मर चुकी है. वो भी तो होता है भुवन That जी has की. not been specified though. ओ छोड़ के भी गई हो In सकती है. Devdas it has been specified, but है. in Devdi नहीं. Oh, पता नहीं. suggested है हाँ. फिर की ओके. Yeah. By the way, ओके there's मेरी फिर बीवी हो सकता है जिंदा भी हो. It's just yeah, not with maybe me they anymore. have 2 wives. There's one scene where Kalki's paternal grandfather is like कि इसको तो जला देंगे. काट के गाड़ देना हाँ. चाहिए खेत में. Yeah. जो उसके बाद वो भाग जाती है वहाँ से फिर. मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसकी मम्मी उसको क्यों अकेले क्यों छोड़ देती है पंजाब में. I think she goes back to where she's from, which is France, I'm assuming, or somewhere. And she just sends her to the most convenient place she can, which is her paternal grandparents. अरे उसकी मम्मी is also very conflicted in it क्योंकि one she was processing the shame that the daughter brought upon the family and second because of the daughter she loses her husband as well. तो उसके लिए रहना मुश्किल ही हो जाता है. तो वो 2 चीज़ें ट्राई करती है. पहले सोचती है शादी करा दूंगी जिसमें वो एक मूंछ वाला क्रीपी दिखता है. मैंने देखा है लेनी का एमएमएस तब भी मैं शादी करना चाहता हूँ. तो पहले एक वो हाँ तो 2 ऑप्शंस कंसिडर करते हैं ना कि एक तो या तो शादी करा देते हैं नहीं तो फिर चलो ठीक है गाँव भेज के फ़ोन उठाना बंद कर देंगे और सिगरेट पी के रोते रहेंगे. तो आई थिंक इसलिए भेज देती हो क्योंकि जस्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू बी अराउंड हर. Any additional points you want to bring up, Chirag, before we wrap up? Oh, also I never understood the significance of juggling. वो juggling क्यों शुरू कर देती है?
Hmm. बाकी चीजें समझ में आया कि she's just trying to numb the pain कि गाने सुन रही है, I सुटा think पी रही है, it's but like juggling for की some start. people it is cocaine, for others it is juggling. What do you guys think of those three dudes who are just waiting? Twilight Twilight players. players. Twilight players. उनके By 2,500 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. Also, I've seen Twilight players at another video. पता है Okay, किसमें? क्या? सुखविंदर का ओ हो Oh, really? इश्क तेरा तड़पावे में Twilight players डांस कर रहे होते हैं. कम से कम 2 तो दिखते हैं मेरे को उसमें वो. Oh, you sure वो वही हाँ है? वही है क्योंकि वो सेम जो मूंछ वाला जो साली खुशी गाता है ना, वो वाला बंदा तो है ही है उसमें. Yeah. और ये ट्रोप भी अनुराग कश्यप मनमर्जिया में भी यूज करता मनमर्जिया है में use कि वो किया तो है, जो yes. ट्विंस होती हैं जो Twins, डांस कर रही yeah, होती हैं और yeah. वो स्टोरी भी विटनेस कर रही होती है. तो जब भी कुछ बहुत ट्रेजिक होता है या फिर वॉशरूम में वो उसको कन्फ्रंट कर रही होती है तो हमेशा वो देख रहे होते हैं. But I don't get the point of characters who are witnessing the story in the story, because If we they are as- good dancers, they should be allowed to witness the Yeah. story. Yeah. I feel like we as audience are already watching the story. Like we are the viewers. Even in Life in a Metro, the band that suddenly appears to play songs. I'm like, why are they needed? You know, I don't know. To I think invoke a reaction from you कि जो राजकुमार हिरानी बहुत करता है कि But अगर कुछ shouldn't- इमोशनल हो रहा है तो सब रो रहे हैं तो ऐसा लगता है ओ मेरे भी आ गए सब. अगर सारे लोग रो रहे हैं But that's तो the मेरे thing. Shouldn't the story do that? Why do you need an additional thing to be like, now you're gonna feel sad? Or now अरे you're gonna दिस इज feel-" अनदर टूल टू मेक यू फील दैट. तो वैसे Sure. तो बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के भी आप सैड फील कर सकते हो, हाँ. बट सैड सीन में एक्स्ट्रा सैड बैकग्राउंड Yeah. म्यूजिक लगा दो तो उससे By the अरे way, वो ट्रेन वाले मेट्रो वाले सीन में जब भी बीट ड्रॉप होता है क्या मजा आया है पता है. ट्रेन वाले सीन में जो ग्लास फेंकता है यार, वो हाँ. ओ that's वो my बहुत अच्छा favorite होता है. cut हाँ in the चुन्नी whole फिर movie. सेकंड में तकिया लेके बैठ तकिया जाता है लेके कि ये बैठ ग्लास जाता है. फेंकने वाला है. Music, I think, is 5 out of 5. It has aged beautifully. I still think this is Amit Trivedi's one of Amit Trivedi's best. I would like to offer soundtracks. a trivia. तो Yes. this was the first movie जिसमें अमित त्रिवेदी गाना गाता है. वो एक रफ कट उसको बना के भेजता है इमोशनल अत्याचार का, ठीक है. और कहता है कि फिर किसी कवाली सिंगर को लाएंगे और उससे गवा देंगे. अनुराग कश्यप कहता है नहीं यही वर्जन मेरे को यूज हाँ. करना है, जिसके चक्कर में द सिंगर्स हैव बीन क्रेडिटेड एज बैंड मास्टर रंगीला एंड रसीला. Yeah. क्योंकि अमित त्रिवेदी बहुत कॉन्शियस था कि मेरे को इसके बाद एज अ सिंगर भी वो चाहिए. मैंने इसमें तो डिस्टॉर्टेड वॉइस में गाना गाया है, इसके चक्कर में हाँ. अगर मेरे अपॉर्चुनिटीज कम हो चली गए गई, तो हाँ. वैसे वो ये जान के उन्हें रूमर फैलाया कि हिमाचल से कोई आए थे 2 रंगीला रसीला, उनने गा दिया, अब वो खो गए हैं पता नहीं कहाँ पे. और फिर बाद में बहुत साल बाद इंटरव्यू में उसने एडमिट करा गया मैं ही हूँ एक्चुअली. Oh, but that sounds very different. क्या Yeah, Amit because he Ji sung doesn't it sound like- nasally. दो गान 2 सिंगर्स हैं, एक अमित त्रिवेदी एक और हाँ, कोई दूसरा. okay, okay. हाँ. बट हाँ वो डिस्टॉर्ट अच्छा गर्लफ्रेंड. मे बी सपने देखे सपने, जन्नत हाँ, के हाँ, that वो is अमित अमित त्रिवेदी, त्रिवेदी. हाँ. Yeah, Yeah, yeah. yeah, yeah. Hmm. Anything else you want to add, guys? तो ट्वाइलाइट प्लेयर्स का मैं बोलना चाहूँगी कि आई चेक देयर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड इट I don't know how to explain it, but it looks like MTV from 2008. The whole aesthetic of that account, Right. it looks like MTV 2008, and man, I don't know, I just feel very ऐसे nostalgic जब भी मैं ऐसे किसी का देखती हूँ. When you So were I'm 10 like, years old. yeah, and I'm like आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसे लगता है कि ये I was कोई gonna ask, are story they है. still active on the account? I don't think they are. Okay. Because yeah. Nice. इसमें अनुराग कश्यप हैज डन अ लॉट ऑफ शो डोंट टेल होता है ना, इसमें Yeah, शो yeah, विदाउट yeah. शोइंग करा है बहुत सारा अनुराग कश्यप ने. जैसे जब वो एमएमएस स्प्रेड होता है तो वो कि लेनी तू बेस्ट है बोलता है हाँ. और स्कूल में सब लेनी तू बेस्ट बोल रहे होते हैं और हाँ. बैकग्राउंड में बस एमएमएस की आवाज आ जा रही होती है. Yeah. और जब वो माही गिल और अभिधेल फोन सेक्स कर रहे होते हैं तो वो बस उसके टोज कर्ल करते हुए दिखाता है. भाई तो बहुत ही So This is- I apparently, think- I also in the Khet wala scene, it's whatever is happening off screen, हाँ. off Yes. frame or वो frame, स्पाई out of कैम frame. की तरह वो Right. थोड़ा लव सेक्स और धोखा टाइप फीलिंग So आया somebody asked Anurag Kashyap back then in an interview that your film is very like sex is a very integral part, but you've never not shown anybody having sex or nudity. So he said yes because I grew up in a very conservative family and showing naked skin is very uncomfortable. for Also, me he's also. just gotten into so much trouble with the censor board. Censors, वो उसमें एक exactly. न्यूड सीन भी Yeah, ऐड कर तो yeah, देवडी भी नहीं yeah. रिलीज होती भाई. या और अच्छा ऑल्सो yeah. व्हेन आई वाज इन 11 तो जब मैंने मूवी देखी थी तो और उसमें इतनी सारी सेक्स की बात हो रही थी तो वो भी लगा था ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस की क्योंकि उसमें कहते हैं वो जब उसे पूछती आई यू डेटिंग समबडी तो मुझे लगा था पता चलेगा देव लॉयल लेकिन कहते हैं हाँ डेट कर रहा हूँ. और फिर वो कहती हैव यू डन इट ऐसी है तो उस ऐसी सब ऐसी बात करते हैं स्कूल में कि हम डेट कर रहे हैं बट हमने कर लिया नहीं कर लिया. ऐसे हो गया जस्ट लाइक ऐसे क्या eyebrow प्यार किया हो गया ऐसे होता कि हो गया फुल हो गया. So Chirag, what we do at the end is on a rewatchability scale of 1 to 10, if you were to rate Dev D, 1 being के अरे यार मतलब पुरानी पिक्चर है बिल्कुल भी relevant नहीं है, and 10 being
भाई मैं जितनी बार देखता हूँ मेरे को कुछ नया मिलता है इसमें से, हाउ मच वुड यू रेट देवडी? I would agree. Go with Times of India here. I think it is a perfect film. 10 on क्योंकि 10? 10 on 10 दूंगा मैं, क्योंकि I keep going back to this film क्योंकि डेटिंग बहुत फ्लॉड हूँ, तो बार बार देख के मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ओ ये वाली चीज़ भी देव कर रहा है, ये गलत है तो और ऑल्सो वेन एवर आई एम गोइंग, इफ़ आई एम फॉलिंग इन लव, तो मैं वो जब उसको चंदा से प्यार हो रहा है वो वाला फेस जाके देखता हूँ. इफ़ आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप, तो फिर उसका जब पारों से अलग हो रहा है और दुखी हो रहा है, तो वो बार बार देखता रहता हूँ मैं. चिराग फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल, तू फ्लॉड नहीं है यार, तेरा प्रॉब्लम वो है. मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ. You said in the beginning you were very anti-drug. Is there a reason for that? एक तो फिल्म ने बहुत मेजर वो करा था कि इसी देव- फिल्म ने? हाँ इसी हाँ, फिल्म ने हाँ. कि जैसे जब वो कोकेन और वो पिल्स लग जाता है तो लग फुल, जाती है हाँ उसकी. उसके बाद लग जाती है. दारू एक बार को तब भी हैंडल कर लेता है, रीले वीले, तो इसलिए मैं लगा था ठीक है दारू पीना ठीक है, बट ड्रग्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. और प्लस मतलब bunch of things that happened in college, people in my friend group, Right, तो right. उसमें that Got was the reason. Okay. This is the only Devdas adaptation when they make him a druggie. Which was a yeah. point Anurag Kashyap wanted to make कि Exactly, yeah. अब अल्कोहल इतना बड़ा टैबू नहीं है. Right. जिस टाइम पे बिमल हाँ. रॉय की देवदास आई थी तब हाँ. था, अब नहीं. अब तो दारू तो पीते ही हैं, तो इसको Exactly. थोड़ा और एक्स्ट्रा आगे जाके ड्रग्स कराने की जरूरत है. और Right. खुद भी अनुराग कश्यप एंड अभय देओल have Yeah. gone on record and said कि we experimented with drugs, तो Hmm. we had a better understanding of how this would make you feel. इसमें Right. कैसा ट्रिप होएगा, क्या रहेगा. Right. Urjita, rewatchability scale? 4. 4 Yeah. out of 10. Oh, sorry, out of 5. Oh, sorry, I was. You said Times of India, तो वो दिमाग में 5 out of 5 हो गया था. Sorry, out of 10, yeah. Out of 10, I think 8.5. Oh, Oh, 8.5. अभी Not 0.5 bad. बढ़िया हाँ, है. 0.5 लगा हाँ. दिया उसने. For me it would be a solid 8 out of 10. अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि एक बार ना अब्बास ने थोड़ा पॉज लेके रेटिंग दिया था कि आई थिंक फॉर मी दिस मूवी इज अ सॉलिड 5. First it was 6, not 5. It was 6. Sorry. But yeah, I mean the strong points of the film still hold. Music still slaps. I think it still looks unique. It Looks still unique. feels new. Also for the time when it was Yeah, released, yeah, yeah. 2009, it was very Very progressive. progressive, yeah. दोस्तों वो क्या बात कर रहे हो आप? Yeah. 2006 में हम और क्या सुन रहे थे? 2009. 2009 में हम और क्या सुन रहे थे? Let's see what were the highest grossing Yeah. films of 2009. और क्या आया था यार? There was Billu Barbar, there was Kamine, Delhi Che. Wasn't Kamine also 2000? Yeah, Kamine. ओ हाँ बोला हाँ था. सेम ही तो है. 11-12 में तो आई थी वो. Yeah. What? वेक अप से आई Oh, थी. 3 Idiots was in Delhi 6, 2009. रॉकेट सिंह. Also, Love आजकल the original one. अजब प्रेम की गजब कहानी. यार So yeah. रणबीर कपूर ने एक साल में 3 बैंगर्स दिए हाँ थे. हाँ तब वो हर साल एक कोई उनका स्टार चेंज हो जाता है ना. मिदास हाँ. टच तो कभी अक्षय कुमार आता है, Yeah. कभी उस पे आता है, तो रणबीर कपूर भी आया था इंडियन टुडे के उस पे. Chandni Chowk to China made more money than Kamine. The world is not fair. Did you guys watch Tu Jhuti Main Makkar? नॉट No. येट. बट मैंने वो देख लिया था कि ये ओटीटी पे ही देखने वाला हूँ मैं. अच्छा. दिस इज नॉट एन इवेंट फिल्म. नाउ द सेग्रीगेशन हैज बीन मेड. और इसमें रणबीर भाई को मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, शाहरुख भाई को मेरे सपोर्ट की जरूरत थी. Oh, Yes, correct, yes. correct. इसलिए मैं पठान देखने चला गया. Good choice. Okay, thank you Chirag for taking time out and Thank you doing so much this for having episode me. with us and discussing a favorite film with us. You can find Chirag's videos on YouTube right now. Anything you want to plug before you go, Chirag? Can I plug a rival podcast, guys? Yeah, sure. Rival क्या है Rival यार? ये Rival तो क्या है? वैसे तुम अरे ये Bollywood की बात अरे नहीं तुम तो करते। समझते हो पिक्चर वाले. ये तो ड्रामा तो बस टिकट बेचने के लिए क्रिएट करा जाता है. एक्चुअल में थोड़ी कोई राइवलरी होती है दोस्तों. एक्चुअल में कोई राइवलरी नहीं होती. कर दे, हम कट कर देंगे. नंबर 1 बुलशिट पॉडकास्ट, ऑल्सो नंबर 1 भाई साहब इन सर्टेन टेरिटरीज. तो हम लोगों ने एक लाइव शो करा था जिसमें से एक क्लिप हम लोग डाल रहे हैं. तो Okay. आई थिंक उससे कोइंसाइड करेगा. तो And who do you do that show with? शाश्वत महेश्वरी, वो शाश्वत का ही पॉडकास्ट है. आई एम अ Okay. गेस्ट. ही इज काइंड इनफ टू हैव मी ऑन It's इट. okay यार, Shashwat has also been on Antariksh's show. It's all hunky dory यार. कोई Okay. competition थोड़ी है. मैं एक मेंशन करना चाहूंगी. मैंने शाश्वत को पूछा था. हाँ, and he refused. He said कि मैं बाहर निकलता नहीं घर से, तुम्हारा ऑनलाइन कुछ होगा तो बताना. एंड द नेक्स्ट वीक आई सी हिम ऑन अंतरिक्ष शो. और Okay, हम भी शाश्वत. जो रिकॉर्ड करते हैं पॉडकास्ट वो उसके घर पे ही होता है रिकॉर्ड. हाँ. तो Yeah. कंजूर मार्ग जाता हूँ मैं. तो वो ऐसा नहीं कि वो कोई झूठ बोल रहा है. वो जेन्युइनली ही जस्ट स्किप्स ऑन स्पॉट्स आल्सो कि कौन जाएगा क्या है.
And your YouTube channel is your name, Chirag Panjwani. Chirag Panjwani. Yes. So you can follow him there. Urjita, where can people follow you? You can follow me on Instagram @urjitavani. You can also follow me on Twitter @vaniurjita. And please subscribe to my YouTube channel. Oh, when is your video coming out? April. Okay. Mostly. Which is when mostly this- April, yeah. Which is the month this episode is also going out. So you never know. Yes. Please look out for Urjita's video. And my name is Abbas. You can follow me on Instagram @AbbasMomin88 and Twitter @AbbasMomin. मेरा भी वीडियो एडिट हो रहा है शायद. तो मेरा YouTube चैनल भी है Abbas Momin. I have 276 subscribers at the time of this recording. So make it 300 at least so that I get some traction. But thank you for joining us. This is where we have to say goodbye to our video viewers. But our audio listeners can stick around for our alternate segment called, another additional segment called Alternate Endings, which you have been told about, Chirag? No. You haven't been told about, so we will fill him in the meantime. If you're watching this on YouTube, please hit subscribe and hit the like button. Share this with someone who you think will enjoy it. If you're listening to us on an audio platform, please rate and review us and follow us. And please come back next week for a new movie with a new guest. Till then, bye-bye.